Then this international taxation is based on two parameters. One is residence based. So all the residents are taxed for all their income, whether that accrue arise in the country, that is in India, or elsewhere. So the residents are taxed on world income, all world income. So that is the residence-based taxation. Then source-based taxation. The local income from the source inside the country is taxed. So in addition to the residence-based taxation, there is a taxation which is on the source of income. If the income accrue or arise in a particular country, but the recipient is a non-resident, then that income is taxed to him in the source country also. Now, then double taxation and avoidance. So, if income is flowing from one country to another, this may be taxed twice. So, there are chances that the incidence of taxation on particular income is twice. So, the same income is being taxed two times, one in first country of source or origin, and the second is in the country where the money is received or recipient of the income is there. Then this may render the international business unviable as the avoidance is required. So if a particular income is taxed twice, and direct tax will be between 20-30%. So if so much taxation is levied twice, then the international business will become unviable. So that is why there is a need for avoiding the double taxation. Then double taxation avoidance agreement. So we have agreement with various countries for double taxation avoidance. Then avoidance where there is no agreement exists. So this double taxation relief is available only also to the people where there is no double taxation agreement. Then double taxation avoidance agreement or treaty has been signed with 90 plus countries by India. There are three models of DTAA: UN model, US model, and OEC model. All these models are similar with some fine differences. Most of the Indian treaty are on UN model. Then double taxation, most of the DTA are comprehensive, but some are limited. So limited DTA will cover ship, aircraft income, estate, inheritance, and gift, etc. But comprehensive will cover all aspects of income. It will cover royalty, it will cover fee for technical service, it will cover salaries, it will cover all sort of income. Then language is used by treaty. So the tax treaty employs standard international language and standard items. This is done in order to understand and interpret the same term in same manner by both assessee as well as revenue. The language employed is technical and stereotype. Some of these terms are explained below. So the language used by the treaties are international language, and these are unique and standard. So some of the terms are contracting state, the country which enters into the treaty. So contracting state is a state
which enters into the treaty with other country. The other country will be called other contracting state. So instead of referring to the country, we or India and USA or something like that, we address the countries as a contracting state and other contracting state in the treaty. The state of residence, the country where a person resides. So the state of residence is a place where the assessee resides. This will be normally based on the domestic law of the country. So that 182 days minimum presence or presence in last so many years, whether he has a dwelling place there or not, and for companies, whether it is domestic or uh, uh, foreign company. Then the state of source, the country where the income arises. So source is where the income arise and or it accrue or arise or deemed to accrue or arise. So this this is used mainly for most of the income, but it will be very used in fee for technical service, royalty, etc. The enterprise of contracting state. So any taxable unit, including individuals of a contracting states, are called enterprise of a contracting state. So instead of using the word assessee, which we use in domestic law, here the term is enterprise of a contracting state. Then permanent establishment, a fixed base of an enterprise in the state of source, usually a branch or a foreign company, and in some cases wholly owned subsidiary as well. So permanent establishment is very important in international taxation. So if there is a permanent establishment, so their taxation becomes altogether different and it becomes like a resident. So permanent establishment will be a branch or a company, foreign company registered in other state, and in some cases it will be wholly owned subsidiary as well. The income arising in contracting state, the income arising in a state of source. So any income arising in a state, a particular state or particular country will be income arising in contracting state. Then various articles of DTAA. So this double taxation avoidance agreement has various articles. So some of them, important one, are enumerated below. Article 1, this define the applicability of the uh, double taxation avoidance agreement. So it will be applicable to a resident of a particular country or a citizen of the country. So that applicability is defined by the Article 1. Then Article 2. The Article 2 define taxes covered. It can be income tax, it can be surtax in a case of India, and whatever the income law or taxation law are there in other countries. So those are embedded in taxes covered. So this uh, double taxation avoidance agreement will cover only the taxes mentioned in Article 2 of the DTAA. Otherwise, other taxation will not be eliminated or will not be exempted. Then Article 31. Article 31 define the termination. So
there, if any country wants to terminate the treaty, so it has to give, there is some initial period in which treaty cannot be terminated, then there is a time for which a notice is to be given, maybe 6 months or so. So in India, USA, the treaty says that first 5 years you can't terminate. Then after that you have to give 6 months notice. And how the notice is to be given, that is through diplomatic channel. And then only uh, we can terminate the uh, treaty. Then definitions. So then there are articles relating to the definition used in double taxation avoidance agreement. So Article 3 deals with general definitions. Article 4 deals with residence. Article 5 deals with permanent establishment. Permanent establishment is a very important issue because if you have a permanent establishment, then the taxation becomes altogether different and it is more or less like a resident assessee. Then there are certain articles which are anti-avoidance. Here, the Article 9 is associated enterprises. So, one enterprise in India may be related to USA, an enterprise in USA, and they have dealing in between. So, these transactions are called transactions between associated enterprise, and there is always a fear that some tax may be transferred from one country to another country, maybe a lower tax regime or uh, otherwise on some other region. So for associated enterprises, there is a anti-avoidance system, and that is called transfer pricing. In India, we have transfer pricing applicable from 2000 onward. Then Article 26, exchange of information. The Article 26 says that the countries will exchange the information regarding the uh, cross-border transactions with each other countries. So in this, lot of information is being exchanged now, and if you have any cross-border transaction, you have any working in the other countries, then that information is being passed on by that country to India, and lot of notices are being received by the assessees in India based on the information. So it is always better to declare the details of foreign transactions in the return. There is a particular column in the return of income where you have to declare that whether you have a bank account or you are assigning authority to a bank account outside India, do you have a foreign assets, foreign liabilities. So all those sections should be meticulously filled up so that whenever information is received from foreign country, so there should not be any problem. Then Article 27 is assistance for collection of tax. So the there is no international code of the justice for taxation purpose specifically, and there is the one country will not have any jurisdiction to collect the tax from the other resident of a other country. So there is a article in double taxation avoidance agreement which gives
to give the assistance for collection of tax for each other country. So this is a help which a country will give to the other country uh, in double taxation avoidance agreement, so that the tax are collected. Then the substantive articles are there regarding income. The Article 7 is business profit. So whatever business profit is there, then the taxation on that is defined and that is charged. So business profit will arise when there is a permanent establishment. Then Article 10 is regarding dividend. So if dividend is received by a uh, assessee from foreign country, then how it is to be dealt with, what will be the deduction of tax in the source country, what will be the taxation in uh, uh, that residence country. Then same thing, Article 11, interest. So interest on interest also, there are uh, particulars that how the tax will be deducted in the source country and how the tax will be charged in the residence country. Normally, the taxation on residence country is the as per domestic law, and in source countries there are sometimes concession given for the uh, foreign people. Then royalty and fee for technical services. So this is the most important item which normally comes into account. You know that for purchase and sale of share goods, that means import and export, there is no income tax levied by the recipient countries. It is only where in the country where the goods are originated or from where the goods are manufactured or manufactured. Then for services, this cross-border taxation is there. And royalty and fee for technical service is the main articles under which these are covered. Then capital gains. So capital gains also is a typical taxation. So here also the capital gain will accrue or arise in the country where the immovable property is situated, and tax will be charged on that. And then again in the residence country, the tax will be levied. Then elimination is required. Then independent personal services. Then if a resident of a contracting state or a particular state is giving a service, personal service, to the enterprise of a uh, another country, then that comes under the independent personal services. This independent personal service will apply only to the individual and partnership firm, etc., but it will not apply to the companies. So there is a separate exemption available in this, and one should avail this while paying the taxes. Then there is a dependent personal services. The dependent personal service will be that an employee of a enterprise which is resident of a or a citizen of a another country. Then other income is the residual. So whatever is not coming under any of the heads will come under the other income. Then there are some other articles. Method of elimination. So method of elimination. The method of elimination can be by giving relief or set off
in the domestic taxation or by exempting the income from the taxation at in ab initio. So there are two methods of elimination for this uh, double taxation. Then non-discrimination. There is an article on non-discrimination of the uh, non-discrimination also. So this article mainly deal that there should not be a discrimination in the foreign enterprise and the domestic enterprise. The taxation law should not uh, be biased against the foreign enterprise or vice versa. Diplomats, Article 28, the privileges of the diplomat are not affected by the double taxation avoidance agreement, and these privileges, whatever is available under the international laws, continues. So there is no disturbance to the diplomatic people because of the double taxation avoidance agreement. Then territorial extension. So sometimes there is some areas where uh, presently it is not uh, uh, the law of the country is not applicable, but subsequently it may be applicable. So whatever taxation is uh, applied there, so that territory is intimated to the other country, and the DTAA will be applicable to that territory also from the date to be notified. So these things have to be notified through diplomatic channel. Then entry in force. So this is the date of commencement of the treaty. So from which date the treaty comes into the force. Now, practical aspects. The royalty or and fee for technical services or included services. So in some agreement like USA, it is fee for included services, and even the fee for technical services is a wide connotation. Mostly used for outward remittance. So whenever we pay to a foreign enterprise, so apart from the payment for the import, most of the item will come under fee for technical service or royalty. The income tax rate for this is 10%, 115A section, and then DTA rate is 10 to 15%. So normally IT rates should be used, but in some DTA the rate may be 7.5% or something. So DTA rate can also be used. Some issue like make available clause in Indo-US and some other agreement, the recipient of service should get equipped with the knowledge or expertise and use it independently in future. So normally the fee for technical services is that giving technical advice or something. But this make available clause is there in Indo-US treaty and some other treaties, which has been interpreted that the person should be able to uh, get the knowledge and expertise and use it independently in future. So if that is not there, if that make available is clause is not satisfied, then that will not come under the fee for technical service and tax can be avoided. Then fee for technical service or included service definition under clause section 9. So section 9 has been ever expanding clause from the beginning. Every time this definition is revised to include something. So fee for technical service means
any consideration, including any lump sum consideration for rendering of any managerial, technical or consultancy service, including the provision for service of technical or other personnel, but does not include the consideration for construction, assembly, mining, or like project undertaken by the recipient, or consideration which would be the income of the recipient chargeable under the head salaries. So one, salary is not covered there, and number two, any consideration for construction, assembly, or mining site. So if a project is being executed outside country, so that will not be covered. But other than that, most of the things will be covered. So here it is a wide range. Managerial services are covered, technical services are covered, consultancy services are covered. So this is a very wide definition, and most of the things will be covered there. Then commission on export. This is a very important area. The commission agent work outside India and not taxable. So this is the clients and soliciting the works are to the persons. The commission agent work outside India and not taxable. So it is the view, and the government had issued a notification somewhere in 2005 that this commission is not taxable because the work of the commission agent is outside India, and he has no income accrue or arise in India. But this notification was subsequently withdrawn for some reason, but the position did not change. So still the position is the same, and the commission will not be taxable in India unless it has some dependent agent or something, some other leg to this. Then independent personal services. So this is also a very important item. The income derived by a person who is an individual or a firm of individual other than a company who is resident of a contracting state from the performance in other contracting state of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in the first mentioned state. So these services, if it is a independent personal services, these will be taxed in the state where that personal is residing or that firm is there. But there are two exceptions to it. One is if this firm has a fixed base in other country, or a place of business in other country, or the person goes there and stays more than 90 days or 180 days. It varies from treaty to treaty. So if that is there, then the independent personal services will be taxable in other state. Otherwise, the independent personal services will be taxable in the first mentioned state only. So here there is a lot of chances of saving taxation. So whenever there is a fee for technical service or any payment, then first we should verify whether it is an independent personal service or not. Then dependent personal service. That means salary, wages, and other similar remuneration derived by a resident of contracting state in respect of an employment shall be taxable only in that state unless employment in other state. So if the employee is not going to the other state, then
it will be taxable in the first mentioned state. And there, if the employee is going to another state, so then presence of 183 days will be required. And then the second condition is, if it is paid by the employer or PE of the other state, then also it will be taxable in other state. Then there is another important area is Form 15CA. So for any remittance from India, we are required to give a Form 15CA, and particulars are to be mentioned there. In Form 15CA, there are three parts, A, B, C. A part is for the payments up to rupees 5 lakhs and taxable. Then part B is taxable, but that certificate from income tax officer for the rate of taxation is taken. And third part is where a certificate from a chartered accountant in Form 15CB is taken. So whichever is applicable, we have to fill up. And this Form 15CA is a very important work, which normally uh, uh, is required. And it is a very big area for chartered accountants to practice. I have seen that in big companies, there are number of remittances, and this Form 15CA and CB is required. So the Form 15CB is the Chartered Accountant Certificate, which is a certification work which is required. Then tax officer may call for details of 15CA and 15CB and verify. In 15CA, there is a declaration, particularly in Part C, that the assessee will furnish all the details regarding 15CA, and the tax officer may determine the liability, and if the liability is more, then the assessee will be liable for the liability plus interest plus penalty on the same. So one should be very careful while certifying the 15CB form and filing the 15CA form. Then normally DT AA will prevail over the domestic law. So it is a settled principle because treaty is a bilateral document, and domestic law is a country's own document. So normally the treaty will prevail, and domestic law will not be applicable. One exception will be if domestic law is beneficial to assessee, the assessee can choose the domestic law. So if domestic law, domestic rate is lower than the uh, treaty rate, then domestic law will, assessee can choose. Then in case of tax evasion, the country may overrule the treaty. But otherwise, normally the treaty is not overruled, and it is honored. We had a adverse treaty, rather a tax adverse treaty with Mauritius. The assessors were getting a lot of benefit under that. So government of India renegotiated the treaty, but did not overrule it unilaterally. So treaty normally is not overruled unilaterally, it is renegotiated. Then tax residency certificate. So this was a new addition few years back.
The person who claims that I want to have the benefit of the treaty has to show that he is a tax resident of a particular state where he is claiming to be a tax resident. So for that, you have to get a tax residence certificate from the country. So we have some this in India, the tax residence certificate is issued in Form 10FB, and then along with the tax residency certificate, there is a Form 10F which is to be filled by the foreign entity, which gives the particulars which may not be there in tax uh, residency certificate. Then TRC of Dubai. So in Dubai, there is no income tax. So some people have a feeling that how to get the tax residency certificate. But we understand that tax residency certificate is available in Dubai also, and there is no problem. And you can get a tax residency certificate from Dubai. Then unilateral relief. So where there is no DTA with any country, India allows unilateral relief from the double taxation. So there are 90 plus countries where we have double taxation agreements, but there are other countries where we don't have double taxation agreement. So instead of making the people at disadvantaged position and uh, they may not trade with those countries, so there is another section, section 91, which allows unilateral relief, tax relief for this double taxation in particular where there is no treaty available. If a person who is a resident of in India in any previous year proves that in respect of his income which accrued or arise during that previous year outside India and which is not deemed to accrue or arise in India, he has paid in any country with which there is no agreement under Section 90 for relief or avoidance of double taxation, income tax by deduction or otherwise under the law in force of that country, he shall be the he shall be entitled to deduction from the Indian income tax payable by him a sum of some calculated on such doubly taxed income at the Indian rate of taxation of the said country, whichever is lower, or at the Indian rate of tax if both the rates are equal. So this unilateral relief is also available under Section 91 for the double taxation, even if there is no treaty. Then quantum of relief. The tax relief is not like TDS and no refund is allowed. So it is not that if you have paid tax, say $100,000 in USA, so same will be getting as a TDS and will get the refund. The benefit will be to the extent of tax payable on a particular source of income or tax paid whichever is less. So whatever tax is payable in India on that source of income and it is compared with the tax paid on that income outside India. So whichever is less will be the benefit allowed. So it is the if supposing you have paid tax at the rate of 10% in USA and here the rate is 30%, then you will be get the benefit of 10% only.
But if the rate in USA is 40%, then you will get the benefit of 30% only. Then supply and services. If there is a contract of supply and erection of machine, then it is better to have separate contracts. So if you are supplying a machinery outside India and you have a contract to erect that machine also, so consideration for those two items will be separate. But if it is a composite contract, then there will be a problem that on how much amount is the service portion and on how much amount the other country should deduct the tax deduction. So it is always better that you have two separate contracts independent of each other, so that on service contract they will deduct the TDS, and on supply contract, there is no TDS applicable. So on a major portion, you will save the TDS liability. Then deduction of tax at source. The deduction of tax at source under 195. For domestic taxation, the TDS sections are 192 to 194. But for foreign taxation, there is one section which is section 195. So in all taxable remittance outside India, the TDS is to be deducted under section 195. Then sale of property by NRI. NRI is selling the property in India. The rate is 20% plus surcharge plus education cess. And this rate is applied on total consideration received, irrespective of the fact that there is the capital gain will be much lower. So, and in this case, the 15 CB form is also not applied, and the tax is deducted unless you get a lower deduction certificate from assessing officer. And if you apply for the same, so apart from the follow-up which is to be done, we understand that they don't give any certificate where the tax rate is, tax deduction will be less than 4%. So minimum 4% tax they will be deducting. Further, for the deposit of tax, in case of a NRI selling the property, the buyer of the property has to get the TAN number, and they have to file the that payment is with the TAN number, and they have to file that return in 27 Q or something. Whereas for the domestic property sale, the return is 26 QB, which is a composite return, and no TAN is required. Then concessional rate for non-rated. On interest and dividend, the rate is 20% and 5% in certain interest. So for certain interest, the rate is only 5%. And royalty and fee for technical services is 10%. The section 115A has this defines this rate. And in this case, if the tax is properly deducted, so no return is to be filed by the non-rated. Then gross income requirement. If the foreign pay don't agree for the deduction, then gross income will be required. So you see, in number of the cases, the foreign payee will say that nothing doing, I want the net payment of this amount,
and TDS I am not willing to get it deducted, and you pay from your side. So in that case, you have not to pay only TDS, but also it is to be grossed up. So supposing you are paying 100 rupees to a foreign uh, person, then if he is not getting the TDS deducted, then the TDS will not be 10%, but it will have to be, the amount will have to be grossed up, and then the deduction will be done. So it will be probably 111 or something, and then on an increased portion also, the deduction will be required. So your liability will enhance in that case. Then tax deduction certificate. So for deduction of this tax, you have to give a tax deduction certificate to the foreign party. And here also, sometimes he is not agreed for deduction of the tax. But even then, you have to uh, you have to issue the tax deduction certificate. So that is the requirement. Then opening of a branch office or a wholly owned subsidiary. So for number of reasons, you are required to open a branch or a wholly owned subsidiary outside India. If you supply an item of machinery which require installation abroad, then you may be required to establish branch or a wholly owned subsidiary. So in some countries, there is specific requirement that you open a branch or a subsidiary where you can uh, do the installation, and they don't allow you to do the installation as a non-resident. And in any case, the period of 6 months is there, and after 6 months, uh, your permanent establishment is your place of construction will become a permanent establishment, and it is better to open a branch or a subsidiary for this erection work. For other uses also, the branch or a subsidiary may be required. So for opening of branch or subsidiary, the procedure is firstly the net profit of the entity which want to open a branch or a subsidiary should be for last 3 years, it should be a profit making company. It should not be a loss making company. Then the investment up to 400% of the net worth is allowed. So it is quite liberal that whatever is the net worth of the Indian entity, so you can invest up to 400% of the net worth. Then form ODI is to be filed online. So online form ODI is to be filed for this purpose. Then documents required. So registration certificate of the Indian company, board registration for investment, and then identity of the proposed directors. So for identity, you will have passport or some valid document. And all these documents should be apostille or certified by the consulate of the other country. So normally the requirement is that the documents, whatever is sent for opening of branch, should be consulated or certified by the consulate of the other country. But there is a Hague Convention, and the signatory to that Hague Convention are all major countries
even Japan, USA, all these countries are there. So there you can have apostille also, and you need not to go for the consulate. And normally, whenever you go for a consultation or a certification by the consulate, the apostille is first step they ask. So these documents are to be certified properly. In domestic law, we normally have notarized documents, but here the certification has to be done by the consulate of that country or at least a apostille. And it is better that one should ascertain all the documents in advance. The documents may vary country to country, and in advance, the document should be ascertained so that these are certified by the consulate or apostille in advance. Otherwise, this process of apostille and certification by the consulate may take 10-15 days, and there will be a extraordinary delay if some documents are left and asked again by the foreign consultants. Then transfer pricing. Now this is also a very important issue, and this transfer pricing adjustment is a major area of concern for the for the assessee. So as per Article 9, the associated enterprises are, there is a separate rules. So for that, one has to determine the arm length price. And for arm length price, for determination of price for transfer of goods services at arm length, section 92 to 92F is there in Indian Act. So according to this, we have to ascertain that if a supply is made by one company in India to a company in USA or vice versa, supply or service or something, then you have to go for a transfer pricing. So transfer pricing adjustment is very heavy. So there are prescribed method of determination of transfer pricing. First is comparable uncontrolled price method. So that means that you compare the price with a comparable uncontrolled price. That means if you have supplied to a enterprise which is not associated, so you compare the price with that, and then if it is equal, then it's okay, because with a uncontrolled or unassociated enterprise, the price will be a fair price. It will be an arm length price. And if the price to a associated enterprise is also comparable, then that will be treated as an arm length price. Supposing that is not available, then the second method will be resale price method. Then supposing you supply some goods to USA, and the USA company, which is an associated enterprise, sells it further. Then you take a resale price of that company and do some adjustments, whatever expenses they have made, whatever profit they should have earned based on the risk and reward, and that price can be taken as an arm length price. Then third method is cost plus method. Then cost of production of that item is taken, and then a fair margin is given, and then this
transfer price or arm length price is decided. Then fourth method is profit split method. Then what you do is that you take the cost of first enterprise and take the sale price of last enterprise to whom that associated enterprise to whom it was supplied, and you combine the profit of both, and then you see that which enterprise contributed how much, and based on that you split the profit between the two and readjust the price and determine the arm length price and uh, do the transfer pricing adjustment. Then transactional net margin method. If any of the above method is not feasible, then this TNNM is applied. Then for transaction, a net margin method is applied. That net margin method on the items which are not to associated enterprise. So where what is the margin percentage? The same margin is applied to the items supplied to the associated enterprise. So then there is another method is such other method as may be prescribed by the board. So the board has prescribed that other method can be where the assessee can prove that this is a arm length price. So that method can be any method, but the assessee, the onus is on the assessee to prove that it is a fair price and it is a arm length price. Then transaction involved will be purchase, sale, lease, tangible, intangible property, provision of services, lending or borrowing of money, any other transaction having bearing on the profit, income, losses, assets of the enterprise, include mutual agreement or arrangement for allocation of or appointment or any contribution to any cost or expenses incurred. Intangible like marketing, intangible human capital, business restructuring, intercompany guarantees, capital, etc. So whole lot of transaction are covered in transfer pricing, and a lot of transfer pricing adjustments are being done. So this is a very important and a very crucial area. Then maintenance and keeping of furnishing of information under section 92D. So if you have an international transaction above rupees 1 crore, then you have to maintain certain records, which are very routine record. The information like ownership structure, multinational group to which this enterprise is a part, broad description of business, nature and terms of international transaction, etc. Some particulars are to be written, and this the record is to be maintained. And there is a very heavy penalty if the record is not maintained. So that penalty is just because you have not maintained the record. The correctness of record, transfer pricing adjustment, uh, then the matter may be referred to a transfer pricing officer. So all these things will come later on. But just because those records are not maintained, so on that tick mark basis, there will be a heavy penalty. So this is also very important. Then CA report in form 3CEB. So a report is to be filed where there is an international transaction by a chartered accountant in 3CEB. So there the requirements are particulars of associated enterprise, particular of international transactions. And this international transaction here is
with the associated enterprise. It is not all international transactions. In Act, we have defined international transaction as a cross-border transaction which are with associated enterprise. Then price as per books, price as per transfer price exercise, method use, etc. All these, besides the particular of the assessee, are to be written, and this return is to be filed. The formats are available, but I think I may not be able to share the formats on the same screen. So thank you very much. That's all what I have to say. Dharam Singh? So anybody has a question? सर एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में दिखेगा आपको, सॉरी क्वेश्चन आंसर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़े प्लीज सर, एक के चक्रवर्ती के अतुल कुमार चतुर्वेदी। Will the service of a law firm fall in the category of independent personal service? Yes, it will come. And if that person is not coming to, supposing they are taking the service outside India, and that person is not coming to India for a period of 90 days or something, so then it will be covered. Now, the second question is, will that section 91 apply if the treaty is not comprehensive and thus does not cover specific income item? That if the treaty is not comprehensive, then maybe this will be covered. But if it is not covered by that in that particular item of the treaty, then it will come under the other income portion, other income head. हेलो। हाँ हाँ सर और कोई सर ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन है सर से पूछना चाहें तो क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं, और कोई सर से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो उससे हम उनको स्पीकर मोड पे ले लेंगे। सर 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद सर हम क्लोज करके नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे सर। सर आई थिंक कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो सर आपकी ये पीपीटी मेरे पास आ गई है, तो हम सिरी फोर्ट सीपी स्टडी सर्कल की वेबसाइट है sirifortca.com, तो उस पर अपलोड कर देंगे। कोई पीपीटी की हेल्प लेना चाहे वहां से ले लेंगे। और ये वीडियो जो सर ने लेक्चर दिया है हमें, ये आपको यूट्यूब चैनल CA और पे मिलेगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे सारी वीडियो जितने भी हमारे सेमिनार वेबिनार होते हैं सारे वहां पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपका जो एक्सपीरियंस सर आपने जो हमें शेयर किया, तो बहुत अच्छा लगा। आई होप कि सब ऑडियंस ने इसको एंजॉय किया होगा। Thank you very much. सर रियली आई थैंक्स यू। Or if anybody has a question later on also, they can email or something. यस यस सर, हाँ ईमेल कर सकते हैं, नहीं डायरेक्टली हमारी साइट पे क्वेश्चन आंसर का एक बना हुआ है बॉक्स बनाया हुआ हमने, वहां पे भी कर सकते हैं, सर को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलो मैं स्क्रीन शेयर हटा दूं सर। थैंक यू सर। हाँ आप उठा सकते हैं सर। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट स्पीकर विद अस CA विकास आनंद जी। विकास आनंद जी youngest chartered accountant, and he has I think good knowledge about other taxation system also, but on my request today he come with some topic on code of conduct of ICAI, क्योंकि सर का बहुत एक इंटरेस्टिंग ये
सब्जेक्ट है, कह रहे हैं कि मैं प्रोफेशनल की तरफ ये दिखाना चाहता हूँ कहाँ कहाँ हम चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सर अपनी प्रैक्टिस को उसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सर देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, किस चीज़ों से बचा जाना चाहिए। और आज के टाइम में प्रैक्टिस में जैसे चीज़ों का ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हमारी तरफ जो आजकल चल रहा है कि बिजनेस को लेके या प्रोफेशनल लाइफ को लेके जो जो प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट किया जाए या ढंग से चलाए, सिस्टम में रखा जाए। जब बात सिस्टम में होती है तो हम सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश ना करें और उन चीज़ों में ध्यान रखने, हमारा लॉ क्या है, हमारा आईसीआई किस किस गाइडेंस के अंदर है, या क्या क्या हमारे लिए प्रेस्क्राइब रूल एंड रेगुलेशंस है जो सीए विकास आनंद जी हमारे सामने लेके आएंगे। तो विकास जी, आई थिंक अनफ प्रोफाइल, आपका जी प्रोफाइल सर, जी मेरे सर, पास नहीं है, थैंक यू सर, लेकिन थैंक यू। मैं सुनारी आई थिंक आपके बारे में अच्छा जानता हूँ सर। जी सर, जी तो सर, प्लीज थैंक यू विकास सर। जी, माइक इन योर हैंड नाउ। सर, तो विकास जी कोई स्लाइड है तो आप शेयर कर सकते हो। जी सर, शेयर कैसे करना है सर इसको, स्लाइड को? जैसे नीचे एक ऑप्शन आ रही होती है शेयर करके। शेयर स्क्रीन, यस सर। हाँ, जी शेयर स्क्रीन आ रही है, आप अपने पहले विंडो ओपन कर लीजिए जो भी पीपीटी या पीडीएफ फाइल है, जी सर, उसके बाद शेयर स्क्रीन पे आ जाइए। यस सर, मैंने खोल दिया है। जी सर, आ गया सर। हाँ सर, हो चुका है, इसको आप हाँ बड़ा कर लीजिए। जी सर, ये बड़ा हो गया हाँ, है। जूम आउट करके उसके बाद व्यू में चले जाइए, व्यू में चले जाइए विकास जी, व्यू में। अच्छा, पीडीएफ व्यू। व्यू के अंदर फुल स्क्रीन व्यू आएगा। यस सर, एक सेकंड में देख फाइल रहा हूँ। एडिट एंड व्यू आ रहा है, जो व्यू आपकी फाइल के अंदर सर। जी सर, हमारे फाइल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, 100%। हाँ, पीडीएफ जो आपने ओपन किया है इसमें व्यू आ रहा है। जी सर, नहीं नहीं सर, ये आ रहा है फाइल सर सही? ओपन किया है, ऊपर ऊपर के जो रो में, ऊपर रो की रो है ना, फाइल एडिट एंड व्यू। जी सर, फाइल एडिट एंड व्यू, इसमें न्यू शेयर, एडिट एंड व्यू। इसी के साथ, इसी के साथ, इसी के साथ जी सर, नेक्स्ट ऑप्शन सर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये व्यू। फुल स्क्रीन व्यू सर। यस सर, सबसे यस सर, फुल स्क्रीन थर्ड, मोड। हाँ ये कर लीजिए सर। जी हाँ सर, जी सर, ले सर, लीजिए सर इसको, बस सर। ओके सर। थैंक गुड यू सर। इवनिंग एवरीवन। तो विकास जी आप लीजिए। जी सर, जी सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सीए विकास आनंद आपके सामने कोड ऑफ एथिक्स अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी रिकमेंडेड किया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हम सभी को ये फॉलो करना चाहिए। जनरली हम मार्केट में दिख रहे हैं, प्रैक्टिस में फॉलो तो करना मुश्किल है, बट अभी पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस, रूल रेगुलेशन जो भी दिए गए हैं उनको हमें फॉलो करते हुए अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोड ऑफ एथिक्स। फर्स्ट, जैसे इथिक्स। इथिक्स क्या है? इथिक्स मीन्स मोरल वैल्यूज, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे अनुसार क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मीन्स द स्टडी ऑफ एन व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन ए ह्यूमन बिहेवियर। सेकेंड, कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स क्या है? जो कि हमको बताता है कि प्रोफेशनल, हम अपने प्रोफेशनल बिजनेस को कैसे करें। मीन्स हमें ऑनेस्टली करना चाहिए और इंटीग्रिटी के साथ, मीन्स सत्यनिष्ठा या ईमानदारी से अपने व्यापार को करना चाहिए। बट शॉर्ट में हम कह सकते हैं, हमें जो चीज सही लगती है, यानी मोरली जो करेक्ट है या मोरली जो एक्सेप्टेबल है, दैट इज कॉल्ड इथिक्स। हमें कोड ऑफ इथिक्स की जरूरत क्यों है सोसाइटी में? सबसे पहले हमें अपने इंस्टीट्यूट के प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए और अपने खुद की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और सीए प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरा, अपने आप को यूनाइट करने के लिए, मीन सीए प्रोफेशन को यूनाइट करने के लिए हम कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें, जिससे कि हम एक दूसरे से यूनाइट हो सकते हैं और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर सिक्योरिंग द सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे फेक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे सीए फाइनल वाले, बहुत सारे लॉयर्स जो हमारे नाम को यूज करते हैं, हमारे साइन को यूज करते हैं। एक बार ले लिया नंबर, एमआरएन नंबर और एफआरएन नंबर, उसके बाद
ऑटोमेटिकली वो सभी लोग वो करते हैं, हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को एक बार से 2 बार हमसे कराते हैं, उसके बाद से फेक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सोसाइटी को मिसगाइड करते हैं और सीए का या उस फर्म का नेम और रेपुटेशन खराब करते हैं। तो हमें कोड ऑफ एथिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें फॉलो भी करनी चाहिए। इम्प्रूविंग इन डिसीजन मेकिंग में हमारा ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो भी इसमें दिया गया करेक्टली क्या करना है क्या नहीं करना, इससे हम डिलीमा में नहीं पड़ते हैं। जब डिलीमा में नहीं पड़ते हैं तो हम अपने अपने डिसीजन मेकिंग को फास्टली ले सकते हैं। अगला सेटिस्फाइंग बेसिक ह्यूमन नीड्स। हमारी ह्यूमन नीड्स क्या है, हमारे प्रोफेशनल्स की ह्यूमन नीड्स क्या है कि जनरली हमें फेयर होना चाहिए अपने काम के लिए, ऑनेस्ट और इथिकली जो है हमारा ह्यूमन बिहेवियर जनरली होता है, जो कि हमको फॉलो करने में हमारा कोड ऑफ एथिक्स और ज्यादा हेल्प करता है। हमारा कोड ऑफ एथिक्स बनाया कहाँ से गया, हमारे इंस्टीट्यूट ने अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाया कहाँ से है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने कोड ऑफ एथिक्स को डिजाइन किया, जो कि हम अपने इंडिया से लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड तक अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें और अपने कोड ऑफ एथिक्स को अपने मेंबर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सकें। देखिए सोर्स कहाँ कहाँ से लिया गया है। जैसे ICAI बीइंग एन मेंबर ऑफ International Federation of an Accountants has considered the ethical standards issued by the International Ethical Standard Board by the Accountant ISBA while framing the code of ethics। मतलब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लिया है, फिर हमने 2000 अपना खुद का कोड ऑफ एथिक्स था उसको भी अभी रिवाइज किया 2019 में। ICAI कोड ऑफ एथिक्स हैज बीन रिवाइज्ड इन जनवरी 2019 एंड ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2020 से। हमने अपने सीए जो मेंबर्स है, अपने कलीग्स हैं, क्या कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा है कि क्या सोसाइटी में क्या कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारे अपने सीए भाई लोगों का। जी, तो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अपने क्लाइंट्स पे ये करते हैं, बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा गुड फेथ है। वो कुछ बताया ना बताया हम मान लेते हैं कि सब कुछ सही है। फिर दूसरी चीज, हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर बहुत ही वीक है। तो भी हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर से हम बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं और ये फैक्ट भी है। अगर हम ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करें तो ये फैक्ट है। हमारे अंदर प्रोएक्टिवनेस की कमी है और लैक ऑफ हम हमारे अंदर नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, बट हम अपने नॉलेज को बता नहीं पाते हैं, अगले को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्लाइंट से बता नहीं पाते हैं। और ना ही अगले को जब एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना हमें अच्छी फीस मिलती है और ना ही हमें अच्छी इमेज मिलती है। जब तक हम अपनी बातों को कह नहीं सकेंगे, अगले से नहीं बता नहीं सकेंगे, तो वो इंटरनल नॉलेज बहुत ज्यादा होने से क्या फायदा, जब तक हम अपनी बातों को करेक्टली कह ना सके अगले से। इनएबिलिटी टू से नो। जनरली क्या है, हम अपने प्रोफेशनल्स को देखते हुए, हम अपने मार्केट के कंडीशंस को और कंपटीशन को देखते हुए किसी भी काम को ना नहीं कह सकते। बहुत बार हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कोई फीस मान लीजिए 50,000 है, बट मार्केट में चल रहा है 30,000 या 20,000, तो मजबूरी में हमें अपने फीस को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये चीज जो है जरूरी है कि हमें अपने अंदर ये चीज नो कहने की कंप्लीट इच्छा होनी चाहिए कि भाई हम अगर करेंगे तो हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके हम अपने सारे जो रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करके ही करेंगे और उसको नो नहीं कहेंगे। मतलब जो भी है अपना अपना स्टैंडर्ड को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने स्टैंडर्ड अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे पैसे के चक्कर में। सम ऑफ एक्चुअल केसेज, कुछ हमारे सोसाइटी में सम ऑफ एक्चुअल केसेज, हम प्रैक्टिकली जब काम करते हैं तो क्या करते हैं हम, वो सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं एक्चुअली, मीन्स लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट। कंपनी में हम ऑडिटर अपॉइंट हो गए, बट हम नहीं लेते हैं। जब हम टैक्स ऑडिटर अपॉइंट होते हैं तब भी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हम अपने उससे नहीं लेते हैं क्लाइंट से। और ना ही री अपॉइंटमेंट क्या लेते हैं कि अगर हमने एक बार टैक्स ऑडिट कर दिया या कंपनी ऑडिट कर दिया तो नेक्स्ट ईयर भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें लेटर ऑफ री अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, बट हम नहीं लेते हैं। हम अपने आप इतना विश्वास करते हैं सब कुछ कि हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। ये हमें खुद मेंटेन करना चाहिए। नॉट ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन अप्रूविंग द अकाउंट। बहुत बार होता है कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया,
और जो कंपनी का रूल कहता है ऑर्डिनरी बिजनेस, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, उसमें से एक ऑर्डिनरी बिजनेस जो है अपना जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाया गया उसको अप्रूव किया जाता है बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा, और उसमें सभी डायरेक्टर्स जो है वो साइन करते हैं इस चीज को, सारे डायरेक्टर्स इसको साइन करते हैं। जब ये साइन करते हैं तो तभी हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव माना जाता है बैलेंस शीट और अडॉप्ट किया जाता है एज पर कंपनीज एक्ट। बट हम क्या करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन पास नहीं करते हैं, बस ऑटोमेटिक बनाया और साइन करके और फिर दे दिया। साइनिंग बैलेंस शीट इन एन गुड फेथ व्हेन विदाउट साइनिंग आर ओनली वन डायरेक्टर साइन। बहुत बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकली इशू जाते हैं कि एक डायरेक्टर है यहाँ इंडिया में और दूसरा डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया है, तो हमें मजबूरन एक डायरेक्टर के साइन से ही काम चलाना पड़ता है, और हम फिर बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो भी हैं, ऑडिट रिपोर्ट हैं, जो बोर्ड के रिपोर्ट हैं, उन सभी रिपोर्ट्स को, सारे रिपोर्ट्स को बना के और फिर साइन करा के एक से या विदाउट उनके साइन के हम खुद साइन भी कर देते हैं और एमसीए के साइट पे अपलोड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है। पहले उनके द्वारा ये चीज एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, अंडरटेकिंग लिया जाना चाहिए कि भाई हमने ये बैलेंस शीट सब समझी है, सब कुछ है, और मैं ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बाद ही हमें अपना साइन करना चाहिए और आगे रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे एमसीए हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो। सजेस्टेड रीडिंग, हम अपना कोड ऑफ एथिक्स कहाँ से पढ़ सकते हैं? हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे जगह से दिए हुए हैं अपने, जैसे सीए एक्ट के अनुसार हमारा है, सीए रेगुलेशन भी हमारा है, सीए रेगुलेशन 1988, फिर आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स जो पब्लिकेशन की है वहां से भी हम स्टडी कर सकते हैं, फिर अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट का रूल भी है, वहां से पढ़ सकते हैं, एफएक्यूज हैं, मैनुअल्स हैं, आईसीआई की वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें हैं, ईएसबीज हैं, स्पीकिंग पीपीटी बहुत सारे लाइव वेबकास्ट के आते हैं इंस्टीट्यूट के, वहां से हम स्टडी कर सकते हैं। हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे 5 हैं, जो कि हमें अपने ऑडिट में फॉलो किया जाना चाहिए और अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में भी फॉलो किया जाना चाहिए। पहला इंटीग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी, पांचवा प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा या ईमानदारी, हमें ऑनेस्टली काम करना चाहिए, यानी बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें होना चाहिए और ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशंस। ऑब्जेक्टिविटी, हमें बायस नहीं होना चाहिए, नॉट अलाउड एज ए बायस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा किसी भी, चाहे वो फीस के मैटर में हो या किसी भी मैटर में हो, या हमारा काम हमसे छूट रहा हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के जोर जबरदस्ती या दबाव के, पॉलिटिकल प्रेशर या किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी तरह का प्रेशर हो, उसको हमको नहीं, उसे अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए, अपना प्रोफेशनल जजमेंट हमेशा करेक्ट रखना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, हमें अपना कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर हमेशा कंप्लीटली लेना चाहिए। जैसे प्रोफेशनल नॉलेज जो है हमारी में डे बाय डे जो हमारे अपडेट्स आते हैं इंस्टीट्यूट के, जो हमारे इनकम टैक्स में चेंजेस हो रहे हैं, जीएसटी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सभी चीजों को हमें स्टडी करना चाहिए, उसके साथ ही हमें प्रॉपरली काम कर सकते हैं। Maintain professional knowledge and skills at level required to ensure that the client and employers receiving competent professional services through the current development in practice and legislative regulations। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें कभी भी क्लाइंट की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस, जब तक हमारे पर कोई प्रेशर ना हो, और वो भी प्रेशर किस तरह का? सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे लीगल और रेगुलेटरी जो स्पेसिफिक अथॉरिटी है, लाइक कोर्ट मांग रही हो या हमारा इंस्टीट्यूट मांग रहा है तभी, और किसी को भी कभी भी अपने क्लाइंट का कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड शुड नॉट डिस्क्लोज टू एनी सच इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी। इनकम टैक्स अथॉरिटी मांगता है हमको कि क्लाइंट का दीजिए, नहीं, हम नहीं दे सकते जब तक हमें स्पेसिफिक अथॉरिटी से यानी कोर्ट से ऑर्डर ना आ जाए, तब तक हमें नहीं देना चाहिए। विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी जब तक ना आ जाए तब तक हमें नहीं देना चाहिए। अनलेस देयर इज एन लीगल प्रोफेशनल राइट एंड ड्यूटी टू डिस्क्लोज, जब तक हमारा मतलब प्रोफेशनल ड्यूटी ना हो जाए, हमारा आईसीआई ना कह दे, तब तक हमें नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए।
प्रोफेशनल बिहेवियर, हमें अपने काम में हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए, जो कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड एनी एक्शंस आर डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे प्रोफेशन को की रेपुटेशन खराब हो या उसकी क्रेडिट खराब हो। हमें हमेशा अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अपना शेड्यूल, जो हमारे इंस्टीट्यूट का शेड्यूल है, जो कि हमारा सीए एक्ट 1949 के चैप्टर 5 में शेड्यूल दिए गए हैं। दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है इंटरनल टू द प्रोफेशन है, और सेकंड शेड्यूल है जो आउटसाइडर से अफेक्ट होता है। जैसे हमारे एक फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। पहले पार्ट में 12 क्लास हैं, जो कि पहला क्लास किस पर एप्लीकेबल होता है, जो सीए प्रैक्टिस में है। दूसरा क्लास किस पे एप्लीकेबल होता है, जो कि सीए जॉब में है। तीसरा किस पे एप्लीकेबल होता है, वह सीए जो जॉब में है या प्रैक्टिस में। मींस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों क्या है हमारे, पहले ये है हमारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मींस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मींस जो हम अपने प्रोफेशनल काम करने के समय कोई भी गलती करते हैं जो कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार या हमारे खुद के मॉरल वैल्यूज के अनुसार लगती है, ऐसे कि हमें प्रोफेशनल वर्क में ये काम नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट में जो है हमारे क्या है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताए गए हैं। और फोर्थ पार्ट में क्या है, अदर मिसकंडक्ट है। ये प्रोफेशनल नहीं है, ये नॉर्मली अदर देन हमारे प्रोफेशनल वर्क है ये मिसकंडक्ट, चौथा पार्ट। तो हमारे फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट सीए इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में सीए हैं उनके लिए है, और उसमें कितने क्लॉज हैं, 12 क्लॉज हैं। सेकेंड पार्ट में कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं, जो सीए जॉब में है उनके लिए है। थर्ड, जो मेंबर जनरली मींस नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट के द्वारा इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उसके अनुसार, अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और फोर्थ जो है अदर मिसकंडक्ट ऑल मेंबर जनरली, इसमें 2 क्लास है। इस तरह से सेकंड शेड्यूल है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 10 क्लास है जो सीए प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड पार्ट जो वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है जो कि नॉर्मली मेंबर सभी के एप्लीकेबल है। और थर्ड पार्ट जो है यह अदर मिसकंडक्ट है, मींस नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इसमें 1 क्लॉज है। आइए हम पढ़ते हैं अब डिटेल में एक एक क्लॉज को। पहले हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर 5 के प्रोविजन, जो मिसकंडक्ट कौन कौन से हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जो डील करेंगे इस चीज को। जैसे हमारा सेक्शन 21 बताता है, ये सी एक्ट का सारा सेक्शन है। जो पहला है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, डीडी शॉर्ट में। दूसरा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, जो कि हमारे सारे जितने क्लॉज है ना, पार्ट 1 में 12 क्लॉज, पार्ट 2 में 2 क्लॉज, पार्ट 3 में 3 क्लॉज, पार्ट 4 में 2 क्लॉज है। वो सारे को फर्स्ट गवर्न कौन करता है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन गवर्न करता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफेंस को। और सेकंड शेड्यूल ऑफेंस को कौन करता है गवर्न, ये डिसिप्लिनरी कमिटी करता है। ठीक है। फिर अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट और डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट डिसिप्लिन, ये सेक्शन 21C में है। अपलेट अथॉरिटी है हमारा, अगर हम इनके ऑर्डर से एग्रीड हो रहे हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन से या डिसिप्लिनरी कमेटी के हमारे जो ऑर्डर पास किए उनसे अगर एग्रीड हैं, तो हम किसके पास जा सकते हैं, अपलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। इसलिए डील विद एन ऑफेंस अंडर द बोथ ऑफ शेड्यूल, जो भी है ऊपर के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, बोथ ऑफ शेड्यूल। प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट सेक्शन 22 में बताए गए हैं। प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट सिंस इट कवर अदर मिसकंडक्ट एंड आल्सो स्कोप इज वाइड। तो और जो थोड़ा एलोबोरेट कर दिया गया है सेक्शन 22 में, जो जो चीज छूट रही थी उसको भी कवर कर लिया गया। अब इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई, आईसीआई ने बहुत सारे अपने दिए गए हैं गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशंस, उन्हें वही सब बताए हैं। जैसे लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस व्हिच रिक्वायर्स अ जनरल एंड स्पेसिफिक परमिशन, कौन कौन सा मतलब जैसे हम काम करते हैं जो भी अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ ऐसे काम है, जैसे हम बन रहे हैं ट्रस्टी बन रहे हैं कहीं ट्रस्ट में, या हम कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्टर से ऊपर जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या तो उसके लिए स्पेसिफिक परमिशन लेना होता है। एक जनरल परमिशन होती है, स्पेसिफिक परमिशन। स्पेसिफिक परमिशन कहाँ से लेते हैं, इंस्टीट्यूट को हमें भेजना होता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, और इंस्टीट्यूट जब हमें परमिशन देगी तभी हम वो काम कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते हो। अगर परमिशन नहीं दी उसके बाद भी हम करने लगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा और हमारे अगेंस्ट इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है।
दूसरा अगला क्या है, सेंट्रल जनरल गाइडलाइंस, सॉरी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 की रिकमेंडेटरी सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स हैं और गाइडलाइंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ सीए फॉर्म इनटू द एलएलपी। इंस्टीट्यूट ने दिए गए हैं बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट कि इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं ये तरीके से नॉर्मली, और इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टेटमेंट इश्यू किए गए हैं। और हमको अपने काम करते हुए जो है ये अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऐसे फॉलो किए जाने चाहिए, सारे अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा इश्यू किए गए हैं। फिर गाइडेंस नोट इन्हें भी हमें फॉलो करना चाहिए, ये इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं डिसिप्लिनरी कमिटी, इसमें क्या इसकी कंपोजिशन क्या है, कैसे ये वर्क करता है, थोड़ा इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म अथॉरिटीज क्या है, ये हमारा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में कौन कौन से लोग होते हैं, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। एक पर्सन लॉ के फील्ड का होता है यानी लॉयर होता है। अगला 1 मेंबर ऑफ काउंसिल, ये लॉयर नॉर्मल नहीं होता है, गवर्नमेंट का लॉयर होता है। फिर 1 मेंबर ऑफ काउंसिल, काउंसिल का कहा कौन सा काउंसिल, अपने आईसीआई काउंसिल का मेंबर एक होता है। अगला 1 नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक नॉमिनी, एक पर्सन जरूर होगा वो, अभी हम कोरम पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि एक पर्सन जरूर होना चाहिए जब हमारी कोई भी एक्शन चल रही है, कोई भी काम चल रहा है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीसी, ये डिसिप्लिनरी कमीशंस, इसमें कौन कौन हो सकता है, ये कौन कौन होंगे, इसमें प्रेसिडेंट हो सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, 1 मेंबर। फिर 2 मेंबर काउंसिल का होगा और 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी में कौन कौन होगा, चेयरपर्सन होगा जो जज होगा सुप्रीम हाई कोर्ट का, जनरली ये जज जो है हमारे रिटायर्ड जज होते हैं। फिर 2 एक्स मेंबर ऑफ काउंसिल, हमारे इंस्टीट्यूट के काउंसिल के 2 जो मेंबर पहले काउंसिल मेंबर रह चुके हैं वो मेंबर होते हैं, और 2 नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। देखिए एक कॉमन चीज है हर जगह कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पर्सन जरूर है हमारे उसमें अथॉरिटी में, हमारे कोई भी जो भी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है या डिसिप्लिनरी कमेटी है या अपीलेट अथॉरिटी है। इसलिए फुल टू फुल हर चीज विदाउट बायसनेस और विदाउट उसके है, किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं है इसमें। फिर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग, मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग अब होता कैसे है, जैसे इनिशिएट ऑन रिसीव मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट किया जा सकता है हमारे यहाँ, जब कहीं से रिसीव हुआ कोई कंप्लेन मिला हो, किसी भी सोर्स से हो, एनी सोर्स से हो, देयर कैन बी स्यू मोटो एक्शंस बाय द काउंसिल, काउंसिल के स्यू मोटो से भी हो सकता है। मान लीजिए कहीं से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिले किसी भी मेंबर के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। फिर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट परमिटेड बाय द, कंप्लेंट तभी परमिटेड होगा जब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा परमिशन दिया जाएगा, तभी कंप्लेंट वापस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। काउंसिल है ज्यूरिडिक्शंस बेसिकली ओवर एन इंडिविजुअल फॉर एन, जो हमारी काउंसिल है आईसीआई की काउंसिल है, ये इसका ज्यूरिडिक्शन कहां तक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर तक है, पूरे फॉर्म पर नहीं है। मींस जिसने गलती की है उसी के लिए है, और आउटसाइडर आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये हमारे मेंबर के लिए है ना इंस्टीट्यूट, हमारा मेंबर के लिए इंस्टीट्यूट बना दो, अप्लीकेबल भी तो हमारे मेंबर पे ही होगा, आउटसाइडर पे कैसे हो सकता है। फिर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या क्या है, हाँ कि कंप्लेंट जो है जैसे टाइम बार्ड होता है 3 ईयर का, जनरली हम लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारी चीजों का, उसी तरह से हमारे यहाँ भी है ये कंप्लेंट फाइल्ड बियॉन्ड 7 ईयर मे नॉट बी एंटरटेन। अब उस समय ना तो डॉक्यूमेंट होगा, ना तो कोई एविडेंस मिलेगा, ना ही चीजें उतनी अच्छे से एक्सप्लेनेटरी होंगी। इस कारण से जो 7 साल से पुराने केसेज है उसको हमारा डायरेक्टेड डिसिप्लिन जो है वो नहीं करता, एंटरटेन नहीं करता है, ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस ऑन अकाउंट ऑफ टाइम लैग, टाइम लैग क्योंकि 7 साल बहुत बड़ा समय होता है, इस कारण से जो है एविडेंस अवेलेबल नहीं होते हैं, जिस कारण से जो है 7 साल से पुराने केसेस को हमारा इंस्टीट्यूट वो नहीं करता, कंसिडर नहीं करता। इवन इफ रिस्पोंडेंट, हाँ यदि अगर रिस्पोंडेंट ने, अगर मान लीजिए कोई केस गया हुआ है इंस्टीट्यूट के पास, बट रिस्पोंडेंट ने कंपनसेट कर दिया कंप्लेंट के खिलाफ, जिसने कंप्लेंट किया उसके खिलाफ जो भी उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उस पैसे को उसने वापस कर दिया, उस वापस करने के बाद भी अगर ये कहा जाए कि मिसकंडक्ट ठीक हो गया हमने पैसा दे दिया, तो ऐसा नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर मैंने गलती की है तो वो गलती है, ना कि मैंने उसको कंपनसेट कर दिया
तो वो गलती हमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। इट विल नॉट अनडू द मिसकंडक्ट, वो अनडू नहीं कर सकता, मींस उस मिसकंडक्ट को करेक्ट नहीं कर सकता है। हमारा कंपनसेशन दे देना जिसने कंप्लेन किया उसको, फाइनेंशियल हमारा जो गलती है अगर तो गलती है ही। even if nobody is aggrieved due to a particular lapse misconduct of a member then can be a disciplinary proceeding। हाँ, अगर कह रहा है कि कोई भी वो ना हो, क्या नाम है, एग्रीव्ड ना हो, हमारे हमारे किसी भी कंडक्ट से कोई बॉडी एग्रीव्ड ना हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई एक्ट ऐसा है जिस जो मिसकंडक्ट में फॉल करता है, तो वह मिसकंडक्ट माना जाएगा और हमारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग हमारे अगेंस्ट स्टार्ट की जा सकती है, भले ही कोई पार्टी एग्री हो या ना। There is no time limit for disposal of complaint and proceeding may continue for a year together। या जो है हमारी प्रोसीडिंग कई सालों तक चल सकती है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं कि इनकम टैक्स में जैसे है कि हमारी असेसमेंट इतने समय में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ नहीं है। जब तक वो नहीं होगा, करेक्ट डिसीजन नहीं होगा, तब तक जो है यह प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। बोर्ड प्रोसीजर, अब कंप्लेंट फाइल करने का तरीका बताया गया, 25 रुपए फीस होगा, फॉर्म में हमें फाइल करना है और कंप्लेंट फॉरवर्ड टू द रिस्पोंडेंट फॉर हिज एक्सप्लेनेशंस, और रिटन स्टेटमेंट देना है हमको 21 डेज, एक्सटेंशन नॉट एक्चुअली मतलब मैक्सिमम 30 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है। फिर एक्सप्लेनेशन फॉरवर्डेड टू द कंप्लेंट फॉर हिज रिजॉइंडर हम दे सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को और देने के लिए। रिजॉइंडर 21 डेज से नॉट एक्सीडिंग 30 डेज तक मैक्सिमम उसको रिजॉइंडर के लिए भी एक्सटेंशन दिया जा सकता है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ 3 डॉक्यूमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट में कॉल फॉर द एनी इंफॉर्मेशन आई थिंक विद तो उसका नेसेसरी लगता हो वो इंफॉर्मेशन और मंगा सकता है हमारा डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, और डिसाइड वेदर देयर इज एन प्राइमा फेसिया गिल्टी, क्या प्राइमा फेसिया गिल्टी है या नहीं है, ये चीज चेक करता है। गिल्टी अंडर आइदर द शेड्यूल और अदर मिसकंडक्ट्स, क्या शेड्यूल के अंतर्गत आता है, मींस हमारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ रहा है या अदर मिसकंडक्ट के अंतर्गत आ रहा है, ये डिसाइड करता है। फिर बोर्ड प्रोसीजर में और आगे यहाँ क्या प्राइमा फेसिया अगर गिल्टी है क्लोज्ड विद द कंसर्न बोर्ड ऑर्डर, अगर प्राइमा फेसिया गिल्टी नहीं है तो प्रोसीडिंग क्लोज कर दी जाएगी, बट अगर प्राइमा फेसिया गिल्टी है तो अपना प्रोसीडिंग कंटिन्यू किया जाएगा। प्राइमा फेसिया देन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमिटी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस कंडक्ट और डिटेल्ड इंक्वायरी कर सकता है। अगर उसको पता चल गया कि हाँ प्राइमा फेसिया गिल्टी है, यानी सच अ मेंबर इज गिल्टी फॉर सच मिसकंडक्ट, board of director or disciplinary committee to give the report on its findings of its guilty। वो रिपोर्ट देगा कि कहाँ कहाँ उसने फाइंडिंग की गलती उस मेंबर के अगेंस्ट, तो उसके बाद ही प्रोसीडिंग होगी। मींस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाएगा मेंबर को भी जिसने मिसकंडक्ट किया है। वन मोर हियरिंग इज डिसाइड द पनिशमेंट, मींस एक और हियरिंग हो सकती है हमारे पनिशमेंट को डिसाइड करने के लिए। ऑर्डर other than the past board of discipline are applicable to the adjudicate, अगर कह रहा है कि ऑर्डर जो पास किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के द्वारा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के द्वारा और डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा, उस ऑर्डर से हम एग्रीव्ड हैं अगर, तो हम अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। मेंबर्स ऑफ ICAI एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ दिस बोर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी और डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट में प्रीफर एन अपील, अपील किसी के पास जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। अपीलेट अथॉरिटी कौन सी होगी, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट की ही अपीलेट अथॉरिटी होगी। अपील इज टू बी फाइल्ड विद इन द 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर किसका होगा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर के रिसीव से 90 डेज यानी 30, 37, 90 3 महीने के अंदर हमको फाइल करना होगा, और फाइलिंग फीस कितनी होगी, 5500 रुपए। अब ये सारा चीज जो है कौन करेगा, हम डायरेक्ट हम गिल्टी है तो हम नहीं कर सकते, हमारे लिए कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे कोर्ट में लॉयर होता है और हम अपने क्लाइंट के लिए हम खुद रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए अगर हमने गलती की है तो हमारे लिए कोई ना कोई हमारे इंस्टीट्यूट का मेंबर होगा, मींस अदर सीए कोई होगा या कोई एडवोकेट होगा जो हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेगा मेरी गलती के लिए, या कोई CS हो सकता है या CWA भी हो सकता है। हियरिंग बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अब हियरिंग कैसे होगा, हियरिंग का प्रोसीजर क्या है, मींस कम से कम बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जब हमारी हियरिंग हो रही है हमारे मिसकंडक्ट के अगेंस्ट, तो उस समय कम से कम 2 लोग होने चाहिए, यानी 2 कोरम, एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जैसे था
और वो थे अपने, एक लॉ के मेंबर थे और एक काउंसिल के मेंबर थे। मींस 3 लोगों में से कम 2 लोग जरूर होने चाहिए उस कोरम को पूरा करने के लिए, और वो हमारी बातों को सुनेंगे। फॉलो द, और फॉलो करते हैं जो प्रोसीजर दिया गया, समरी प्रोसीजर्स। फिर फॉलो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उनको फॉलो करना ही करना है। एडजर्नमेंट नॉट मोर देन वंस, एक से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं हो सकता। if found guilty, then one more opportunity of hearing before the awarding punishment, पनिशमेंट देने के पहले एक अपॉर्चुनिटी और दिया जाएगा जिस मेंबर के अगेंस्ट मिस कंप्लेंट, ये जिस मेंबर ने गिल्टी किया है उस मेंबर को एक अपॉर्चुनिटी और दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। फिर ये तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का हो गया कि कैसे वो वर्क करेगा, हियरिंग कैसे सुनेगा। और ये डिसिप्लिनरी कमिटी हो गई। डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन किसके लिए होता है? फर्स्ट शेड्यूल के लिए होता है, और डिसिप्लिनरी कमिटी किस लिए होता है? सेकेंड शेड्यूल के लिए होता है। तो डिसिप्लिनरी कमिटी ये जो है इससे थोड़ा सा ज्यादा ये कह सकते हैं खतरनाक है जी। इसमें कितने कोरम होने चाहिए? उसमें 2 कोरम थे, इसमें 3 कोरम होने चाहिए। इसमें प्रेसिडेंट या डिसिप्लिनरी कमेटी में एक मेंबर होता है ना, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। तो वो इसमें 3 कोरम है, और एक वहाँ का मेंबर होगा, काउंसिल का मेंबर होगा, और एक वो होगा अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर। कम से कम 3 होने चाहिए, विद एटलीस्ट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी। इसमें मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट नॉमिनी, बट इसमें मैंडेटरी है। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी में जरूर से जरूर होना ही होना है गवर्नमेंट नॉमिनी का। विटनेस कैन बी कॉल्ड, जो हमारा विटनेस होगा वो इस यहाँ पे बुलाया जा सकता है। फिर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा। एडजर्नमेंट नॉट मोर देन वंस, इसमें भी एडजर्नमेंट एक से ज्यादा नहीं हो सकता था, यहाँ पे नहीं हो सकता है। फिर इनएबिलिटी ऑफ एन रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी अवेलेबल था। एक से ज्यादा का अगर हम कहें कि एडजर्नमेंट ले लीजिए, जैसे इनकम टैक्स हम ले लेते हैं, वैसे यहाँ नहीं पॉसिबल है हमारे इंस्टीट्यूट में। If guilty, then one more opportunity to respondent before awarding the punishment. पनिशमेंट देने से पहले एक बार जरूर अपॉर्चुनिटी आपको ईयर किया जाएगा जिस पर्सन ने गिल्टी की है। पनिशमेंट क्या और कैसे मिलेगा मेंबर को? पनिशमेंट में भी एनी में से एक कोई हो सकता है, या दोनों या तीनों हो सकता है। जैसे रिप्रिमेंड कर सकता है उस मेंबर को फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत, अगर उसकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पाया गया है, देन वो क्या कर सकता है? वो रिप्रिमेंड कर सकता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन हमारा, या हमारे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी को 3 मंथ के लिए सस्पेंड कर सकता है। 3 मंथ तक हम कोई भी साइनिंग काम नहीं कर सकते, कोई ऑडिट नहीं काम कर सकते हैं। सिर्फ डांट के ही छोड़ सकता है, या सस्पेंशन कर सकता है, या फाइन लगा सकता है अप टू 1 लाख रुपीज तक का। फिर सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत अगर हमारी गलती पाई गई तो डिसिप्लिनरी कमिटी क्या कर सकता है? रिप्रिमेंड कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है एनी पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले वाले में जैसे 3 मंथ के लिए था, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए कर सकता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत कोई गलती आई है तो, लेकिन सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत कोई गलती हमारी पाई गई तो वह किसी भी पीरियड के लिए, डिस्क्रिप्शन है इंस्टीट्यूट का कि किसी भी पीरियड के लिए वो हमारा सीओपी को सस्पेंड कर सकता है, या परमानेंटली भी हमें बैन कर सकता है। और फाइन कितना लग सकता है? मैक्सिमम 5 लाख रुपीज लग सकता है फाइन। नाउ देयर इज नो नीड टू रेफर द हाई कोर्ट। इसमें हाई कोर्ट के केस की कोई जरूरत नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट खुद सब कुछ डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। अब इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट पनिशमेंट हो गया हमारे लिए, 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम लग सकता है शेड्यूल 1 में, और शेड्यूल 2 में मैक्सिमम 5 लाख तक का। और उसमें 3 मंथ के लिए हमको वो किया जा सकता है, हमारे डिग्री को सस्पेंड कर सकते हैं, और वहां पे किसी भी पीरियड के लिए मोर देन 3 मंथ या परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं। अब वो तो डायरेक्ट पनिशमेंट था, ये इनडायरेक्ट पनिशमेंट क्या होगा हमारे लिए? हम क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आरबीआई का ऑडिट मींस जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं हम लोग बैंक का, उसके लिए हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अदर बैंक ऑडिट्स जैसे जो हम लोगों ने कंकरेंट ऑडिट करते हैं, स्टॉक ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट करते हैं, या सिस्टम ऑडिट करते हैं, कोई भी ऑडिट करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, वो सभी से हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे किसी भी, अगर हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पाया गया तो, और हमें अगर गिल्टी पाया गया तो। फिर सीएजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीएजी के द्वारा ऑडिट अलॉट होती है, उसमें हम बैन हो जाएंगे। फिर अदर गवर्नमेंट बॉडीज लाइक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, और सारे गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये अपना म्यूनिसिपैलिटीज है, सभी के लिए हमारे लिए दिक्कत है। देयर आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बॉडी, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, सभी के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए आ जाएगी। सारे गवर्नमेंट बॉडी हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर हमने फाउंड हो गया तो हमारा सारा ऑडिट वर्क
कंप्रोमाइज होने लगेगा, हमारा सारा प्रॉब्लम होने लगेगा। एलिजिबिलिटी टू ट्रेन द आर्टिकल, अगर हम गिल्टी पाए गए तो हम आर्टिकल ट्रेन नहीं कर सकते, आर्टिकल्स नहीं रख सकते, और उन्हें नहीं स्टिग्मा, हमारे नाम के आगे धब्बा लग जाएगा और कलंक लग जाएगा कि भाई हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, इससे बड़ी गलती क्या होगी। वो तो डायरेक्ट पनिशमेंट था, ये इनडायरेक्ट पनिशमेंट ज्यादा बड़ा है और खतरनाक भी है। फिर ये प्रोसेस इटसेल्फ इज मोर टॉर्चरस, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ये पनिशमेंट। और अब मेंबर के अगेंस्ट कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? क्लाइंट कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है, बैंक कर सकता है, लेंडर कर सकता है, या इन्वेस्टर कर सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी में कौन कौन आ गया? इनकम टैक्स, जीएसटी, या हमारा एमसीए, कोई भी कर सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी है, आरबीआई कर सकता है, सेबी कर सकता है, फेमा कर सकता है, हमारे यहाँ का स्टाफ मेंबर कर सकता है, आर्टिकल ट्रेनिंग कर सकता है उस मेंबर के खिलाफ, को प्रोफेशनल्स, अदर प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, टोटल स्ट्रेंजर कर सकता है, कोई भी मेंबर जो अपने फर्म का पार्टनर है वो कर सकता है, या कोई भी कंप्लेंट मे बी फाइल ऑन ईगो क्लैश, किसी के ईगो क्लैश हो रहा है या कोई राइवलरी फर्म है वो कर सकता है कंप्लेंट, या एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल ब्लैकमेलर, कुछ प्रोफेशनल ब्लैकमेलर होते हैं वो भी कर सकते हैं अगेंस्ट किसी भी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट। अदर एक्सपोजर्स एंड वल्नरेबिलिटीज, अदर हमारे अगेंस्ट क्या क्या एक्सपोजर हो सकते हैं, जैसे पुलिस केस हो सकता है क्रिमिनल कंप्लेंट के अगेंस्ट, द ऑफेंस रिजल्ट इन द अरेस्ट भी हो सकते हैं और पुलिस कस्टडी में भी जा सकते हैं। फिर हमारे अगेंस्ट मीडिया पेपर पर आ सकता है, डिफेमेशन हो सकता है, हमारा कस्टमर कंज्यूमर फोरम में भी कंप्लेंट हो सकती है। अब आ जाइए शेड्यूल पढ़ते हैं अपने इंस्टीट्यूट का। फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में 12 क्लास थे, उसमें फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 12 क्लास हैं, वो 12 क्लास को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पार्ट 1 में फर्स्ट क्या कहता है, अब मेंबर, पार्ट 1 में क्या है, मेंबर इन प्रैक्टिस, जो मतलब सी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए है ये, कि कौन कौन से ऐसे मिसकंडक्ट हैं जो कि इस अंतर्गत आते हैं 12। फर्स्ट, अगर हम अपना नेम अलाउ कर देते हैं किसी और को यूज करने के लिए, allow any persons to practice in his name except his partner or employee who is also, means सीए के अलावा जो हमारा सीए पार्टनर है या सीए एम्प्लॉय है मेरा, उस इन दो के अलावा कोई भी अगर हम अपना नाम अलाउ करते हैं किसी और को यूज करने के लिए, हमारा फर्म का नेम यूज करिए, हमारे सीए का नाम आप यूज कीजिए और काम कीजिए, तो वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हमारा पार्ट 1 क्लॉज 1 में आता है। फिर पे एनी शेयर और कमीशन टू द एनी पर्सन, हम अगर अपने फीस का कोई हिस्सा पे करते हैं कोई शेयर है, कमीशन है, ब्रोकरेज टू द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट और एनी पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, मींस अदर देन, इनके अलावा अपने जो एम्प्लॉय है या अपना पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर, इन लोगों को छोड़कर किसी को भी हम कोई भी जैसे रेफरल कमीशन हो गया या कोई ब्रोकरेज, किसी कोई भी प्रोफेशनल वर्क लेने के लिए अगर हम कोई भी काम के लिए पैसा पेमेंट करते हैं अलग से जो कि इथिकल नहीं है, देन वो हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर हम किसी भी काम को किसी को कराते हैं या करते हैं तो उस केस में जो है हम कोई प्रॉफिट लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कोई भी उससे रेम्युनरेशन अलग से कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन या लेते हैं तो उस केस में भी गिल्टी माना जाएगा क्लास 3 में। क्लास 4 में, इंटर टू द पार्टनरशिप विद द पर्सन इज नॉट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, जो हमारे मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है के में मींस सीए के अलावा हम किसी और से पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट ने हमारे बताया है कि सीडब्ल्यूए, सीए, लॉयर, आईसीडब्ल्यूए, आर्किटेक्ट उनके से कर सकते हैं, बट इनके अलावा जो स्पेसिफाइड नहीं है उनके अलावा हम किसी से भी कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। मींस यह पार्टनरशिप कैसा पार्टनरशिप कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि हम किसी और से पार्टनरशिप करके व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं या असाइनमेंट की बेसिस पे कर रहे हैं, ऐसा कोई भी पार्टनरशिप हम नहीं कर सकते, वो हमारे सीए के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। फिर क्लास 5 में, सिक्योर वर्क फ्रॉम द पर्सन हु इज नॉट हिज एन एम्प्लॉय और पार्टनर, तो हम कोई भी वर्क किसी उससे अदर देन अपने एम्प्लॉय या पार्टनर, सीए एम्प्लॉय या पार्टनर के अलावा कहीं से भी सिक्योर कर सकते करते हैं अगर वर्क, तो वह हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्लास 6,
सॉलिसिटिंग द वर्क बाय, हम सॉलिसिट कर रहे हैं वर्क थ्रू सर्कुलर, या हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यूज के माध्यम से, जो कि अलाउड है। उस अलाउड के अलावा जो भी तरीके हैं उसके अगर अनइथिकल मीन्स से अगर हम कोई भी वर्क, अपना प्रोफेशनल वर्क अटेंड कर रिसीव कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड मोड में, आगे में भी पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे हम कर सकते हैं अपना। क्लास 7 पार्ट 1 में, एडवर्टाइज हिज इन प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेप्ट अलाउड, जो भी अलाउड है उस तरीके से ही सिर्फ हम अपना कर सकते हैं। 8वां क्लास 8, एक्सेप्ट द ऑडिट वर्क विदाउट फर्स्ट, कहा हम जो प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लेते हैं, अगर हम विदाउट एनओसी के काम कर रहे हैं उस केस में भी यह जो माना जाएगा हमारा क्लास 8 के अनुसार, फर्स्ट पार्ट के अनुसार क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। जैसे टैक्स ऑडिट के लिए हमको एनओसी लेना होता है, कंपनी ऑडिट के लिए कोई भी ऑडिट वर्क अगर हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, उसके विदाउट, उसके बाद हमारे पास अगर ऑडिट आ रही है या कोई वो आ रहा है ऑडिट वर्क, कंपनी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, जीएसटी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, बैंक ऑडिट है, कोई भी ऑडिट है अगर आ रही है, तो हमको फर्स्ट कम्युनिकेशन प्रीवियस ऑडिटर से करना है। मींस हमको राइटिंग में उन्हें बताना है, चाहे वो ईमेल, आगे पढ़ेंगे कि स्पीड पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी ऑथराइज कर दिया गया है, हमको एनओसी लेना ही लेना है उनसे। अगर हमने नहीं लिया, उसके बिना ही अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो क्या माना जाएगा, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। और इथिकली भी हमें नहीं लेना चाहिए, हमें इथिकली मीन्स हमें एनओसी लेना ही चाहिए, विदाउट एनओसी नहीं काम करना चाहिए। क्या जाने उसका पैसा फंसा हो या क्यों सीए बदल रहा है, कोई तो प्रॉब्लम होगी उससे। क्लास 9, अगर एक्सेप्ट ऑडिट वर्क विदाउट फर्स्ट असर्टेनिंग रिक्वायरमेंट, हाँ सेक्शन हम सबसे पहले ऑडिट वर्क कोई भी अपना कंपनी ऑडिट के अकॉर्डिंग, मींस अपना कंपनी एक्ट 2013 है जो, उसके रेगुलेशन जो रिक्वायरमेंट है 139, सेक्शन 139 और 140 के अनुसार ही हमको करना चाहिए। मींस जो प्रीवियस ऑडिटर का प्रॉपर जो वो होता है, रिजिग्नेशन होता है या रिमूवल, वो सारे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुए चाहिए, फिर एजीएम में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सारा का सारा कंपनी लॉ को फॉलो करते हुए हमें अपना ऑडिट वर्क स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा क्लास 9 के अकॉर्डिंग। फिर एक्सेप्ट प्रोफेशनल असाइनमेंट वेयर द फीस, हाँ फीस बेस्ड अपॉन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आर कंटिजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स एज ए रिजल्ट। मींस अगर हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जो हमने, हमारा फीस किस चीज पे डिपेंड है, परसेंट टर्नओवर के पे या प्रॉफिट कितना हम दिखाएंगे उसके आधार पे हमारा फीस डिसाइड हो रहा है, या कंटिजेंट अपन फाइंडिंग कितनी हम गलतियां निकालेंगे उनकी ऑडिट के केस में, या कितनी गलतियां छोड़ेंगे, उसके आधार पे अगर फीस डिसाइड हो रहा है तो वो हमारा क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। और इस चीज को हमें हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। कभी भी हमें अपना फीस परसेंटेज के आधार पे, टर्नओवर के आधार पे, या प्रॉफिट के आधार पे, या फाइंडिंग्स के आधार पे नहीं डिसाइड करना चाहिए। पार्ट 1 के क्लास 11 में, एंगेज इन एनी अदर बिजनेस आर ऑक्यूपेशन, हम जनरली अपने प्रोफेशनल वर्क इतना ज्यादा ऑलरेडी है कि हम उसमें अच्छे से कर सकते हैं, बट अगर हम किसी और में इन्वॉल्व होते हैं तो जो परमिटेड है और स्पेशल परमिशन या जनरल परमिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा हमको लेने के बाद ही हम किसी और में एंगेज हो सकते हैं। अगर उसके विदाउट परमिशन हम जो चीजें हैं उसमें एंगेज हो रहे हैं तो वो मिसकंडक्ट माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें अपने प्रोफेशनल वर्क को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्यों? टाइम तो उतना ही है, 8 घंटे 10 घंटे पर डे जितना करना है, अगर हम उसमें आधे से ज्यादा समय अपना, मीन जितना भी समय अगर हम दूसरे बिजनेस में लगाते हैं, यानी हम अपने मेन काम से डेविएट हो रहे हैं, और जब डेविएट हो रहे हैं तो हम 100% अपना दे पाएंगे, जिस कारण से ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। क्लास 12, allow a person who is not a partner or any other person who is not a member of an institute to sign। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि एक सीए दूसरे सीए अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे से कह देता है अपने स्टाफ से, बट यह पूर्णतया गलत है कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे या ऑडिट रिपोर्ट पे कोई और साइन करे अदर देन सीए, वो जो खुद है या उसका पार्टनर है, ये दो के अलावा अगर कोई भी साइन करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। कितनी भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, बट हमें खुद अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ऑडिट रिपोर्ट, जो भी साइनिंग की जो है सर्टिफिकेशन खुद करना चाहिए या अपने पार्टनर से ही कराना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय से नहीं कराना चाहिए।
मेंबर अब ये हो गया हमारा क्लास, पार्ट 1 में 12 क्लास थे टोटल, 12 क्लास हो गए हमारे। अब आ जाते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में। जो मेंबर किस में है, सर्विस में है। मेंबर इन सर्विस मींस जॉब में है। जो मेंबर जॉब में है उनके लिए भी दो ऐसे वो हैं, दो क्लॉज हैं। दो क्लॉज बताए गए हैं कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे कब, जब हम अपना रेमुनरेशन ही शेयर कर रहे हो, मींस सैलरी अंडरटेक टू शेयर हिज एमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मींस जनरली क्या होगा, हमारा सैलरी एमोल्यूमेंट है हमारे इसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी हम अगर सैलरी अपना शेयर कर रहे हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि 1 लाख की फीस है, 80,000 मिल रहा, 20,000 पे हम बट हम साइनिंग कर रहे हैं 1 लाख रुपए पे, शो कर रहे हैं 1 लाख रुपए पे। दिस इज मिसकंडक्ट, इसलिए हमें ये चीज अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्लॉज में क्या कहता है, एक्सेप्ट एनी पार्ट और फीस और प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी लॉयर और सीए और ब्रोकर एंगेज बाय द कंपनी। हाँ, अगर हम जॉब में हैं, किसी कोई भी लॉयर वहाँ काम कर रहे हैं, कोई सीए या कोई ब्रोकर है या कोई भी कस्टमर है, उनसे कोई कमीशन ले रहे हैं हम या ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं, तो वह अलाउड नहीं है, यह इथिकली सही नहीं है। दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर हम कोई भी कमीशन ले रहे हैं उनसे, या हम उनको काम अलॉट कराने के लिए, या उनको हम वर्क दिलाने के लिए अपने कंपनी उससे कमीशन ले रहे हैं, तो यह बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। इसके लिए जो भी मेंबर हमारे जॉब में है उनके लिए। पार्ट 3 में कितने क्लास हैं, 3 क्लास हैं। मेंबर जनरली मींस या प्रैक्टिस वाले भी हो सकते हैं और जॉब वाले भी हो सकते हैं। क्लास नंबर 1, 2, 3 क्या बता रहा, मेंबर वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट वुड बी गिल्टी ऑफ इफ नॉट बीइंग अ फेलो एक्ट एज अ फेलो। मींस हम एफसीए नहीं है लेकिन हम एफसीए की तरह काम कर रहे हैं। मींस जो हमने डॉक्यूमेंट, जनरली होता क्या है, ये जो भी ऑडिट के लाट करने के लिए अपना फॉर्म प्रोफाइल देते हैं बहुत सारे लोग, जो एफसीए नहीं होते उसके बाद भी एफसीए वहां कोट करते हैं, दैट इज रॉन्ग। वो उसी चीज की यहाँ पे बात कर रहा है। बहुत बार हमने देखा है, बहुत सारे अथॉरिटीज कंप्लेन आती है कि एफसीए नहीं है। बहुत बार वो चेक कर लेते हैं साइट पे, वो नहीं चेक करते हैं तो नहीं पता चलता, बट अगर चेक कर लिया तो पता चल जाता है कि भाई मेंबरशिप नंबर डाला जैसे ही तुरंत पब्लिक वेबसाइट में खुल जाएगा, आप एसीए हैं या एफसी हैं और आपने गलत में रिप्रेजेंट किया है, तो वह अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो हम इसके अंतर्गत आ सकते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत, क्लॉज 1 पार्ट 3 के। Does not supply the information called by the institute or council या its committee या directorate disciplinary committee या board of discipline। कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको हमें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अगर हम नहीं प्रोवाइड करते समय से तो यह जो है हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। फिर गिव इंफॉर्मेशन नोइंगली, हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो जानते हैं हम गलत है, उसके बाद भी हम वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। गिविंग द इंफॉर्मेशन नोइंगली टू बी फॉल्स, यह गलत है लेकिन उसके बाद भी हम दे रहे हैं। व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोफेशनल वर्क इनवाइट कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर आर इंक्वायरिंग और पब्लिशिंग राइटअप लिख रहे हैं, या कोई टेंडर भर रहे हैं उसमें जानबूझ के हम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम गलत क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको प्रोफेशनल वर्क वो चाहिए, इसलिए प्रोफेशनल वर्क अगर लेने के लिए हम गलत इंफॉर्मेशन कोई दे रहे हैं वो हमारा मिसकंडक्ट माना जाएगा, क्लास 3 के अंतर्गत, पार्ट 3 के अंतर्गत। अब आ जाए अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट ये जो है हमारे प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड नहीं है। अदर मिसकंडक्ट मींस अदर देन प्रोफेशनल वर्क। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, इट इज फाउंड गिल्टी बाय द कोई सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट विच इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। मींस सीधा सा है, 6 महीने से कम की अगर आपको वो हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गई यानी जेल हो गई, तो वह हमारे इंस्टीट्यूट के फर्स्ट क्लॉज के पार्ट 4 के में भी यह इसको माना जाए। क्यों, क्योंकि डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन हो जाएगा, हमारे इंस्टीट्यूट की भी क्रेडिट खराब होगी, जिस कारण से यह हमारा मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी सिविल कोर्ट ने या क्रिमिनल कोर्ट ने आपके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल करने के बाद आपको अप टू 6 मंथ का अगर इम्प्रिजनमेंट कर दिया, जेल कर दिया, तो वह माना जाएगा मिसकंडक्ट। सेकेंड, ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, कोई ऐसा वर्क हमने कर दिया जिससे हमारे इंस्टीट्यूट पर वो हो रहा हो, उसकी क्रेडिट खराब हो रही हो, या हमारे प्रोफेशन, सीए प्रोफेशन के लिए एक धब्बा हो या कलंक हो, जिस कारण से जो है वह हमारे सेकंड क्लॉज में कंसिडर होगा और अदर मिसकंडक्ट माना जाएगा।
ये तो हमने अभी स्टडी किया फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें 4 पार्ट थे। फर्स्ट में 12 क्लास थे, सेकंड में 2 क्लास थे, 3 में 3 क्लास थे और फोर्थ में 2 क्लास थे। अब हम स्टडी करते हैं सेकंड शेड्यूल को। सेकंड शेड्यूल में कितने क्लास हैं? पार्ट 1 में 10 क्लास हैं, पार्ट 2 में हमारे 4 क्लास हैं और पार्ट 3 में सिंगल क्लास हैं। तो आइए हम इसका डिटेल स्टडी करते हैं सेकंड शेड्यूल का। फर्स्ट क्लास में क्या कहता है? कोई भी डिस्क्लोज करते हैं इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, ये पहले अप्लीकेबल किस पे होगा? जो सीए प्रैक्टिसिंग है, ना कि जॉब वाला। ठीक है, यानी फर्स्ट हम क्या कहते हैं? डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू द एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट। अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट का किसी और को शेयर किया, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। हम कोई काम करने किसी क्लाइंट का और हमने उस इंफॉर्मेशन को किसी और से डिस्क्लोज किया, देन वो क्या माना जाएगा? हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्लास फर्स्ट में। क्लास सेकंड में सर्टिफाइज एनी रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सर्टिफाई कर रहे हैं अनलेस एग्जामिन हैज बीन डन बाय हिम और पार्टनर और एम्प्लॉय और एनी अदर सीएन प्रैक्टिस। मींस सीधा सा बात है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट या कुछ भी चीज हम सर्टिफाई कर रहे हैं और उस चीज को किसको एग्जामिन किया जाना चाहिए? मुझे या मेरे पार्टनर को या मेरे एम्प्लॉय को, इसके या कोई भी सीए के द्वारा एग्जामिन किया जाना चाहिए, तभी हम उस चीज को सर्टिफाई कर सकते हैं। विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट चेकिंग हम सर्टिफाई कर दिए, साइन करके दे दिए, देन यह एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी माना जाएगा और यह जनरली सोसाइटी में देखा जाता है ये मिसकंडक्ट। तो हमें इस चीज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए और खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस कारण से जो है हमें कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट विदाउट एग्जामिनेशन कभी भी सर्टिफाई नहीं करना चाहिए। थर्ड, क्लास 3 में क्या कहता है? गिव एन इम्प्रेशंस दैट वाउच फॉर एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। हाँ, जो हम प्रोजेक्टेड प्रोविजनल बनाते हैं, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट या प्रोविजनल स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं, उस पर जो है कभी भी हमको एक्यूरेसी का हमको साइन नहीं करना है। मींस हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने फ्यूचर ट्रांजैक्शन को वो किया, सर्टिफाई किया है। हमें यह कभी भी नहीं लिखना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारा एसएई 3420 उसमें भी बताया गया है कि हमें एक्यूरेट नहीं दे सकते। हम आज का दे सकते हैं ना, फ्यूचर का क्या जानकारी कि बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रॉफिट होगा, क्या सेल्स होगा, क्या टर्नओवर होगा, क्या खर्चे होंगे। हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, ना कि हम एक्यूरेसी से बता सकते हैं उस चीज को। हम कभी भी एक्यूरेसी से फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बारे में बता ही नहीं सकते हैं, जिस कारण से हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए उस चीज को कि हम उस पर साइन करें। और साइन करें तो पहले से ही डिस्क्लेमर लगा दें कि हमने वाउचिंग नहीं किया है किसी भी एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन का, जो कि फ्यूचर में होने वाला है। अगर हमने कर दिया तो फिर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर हमने विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन या फ्यूचर ट्रांजैक्शन को सर्टिफाई कर दिया तो वो हमारा मिसकंडक्ट माना जाएगा क्लास 3 में। अब क्लास 4, express his opinion on financial statement of any business in which his firm or partner are substantially interested। अगर कोई भी हम या हमारा पार्टनर, मींस कोई भी मेंबर या उसका पार्टनर या उसका फर्म कहीं भी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है किसी भी बिजनेस में या कहीं किसी फर्म या बिजनेस में, अगर वह सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो उस केस में जो है हमें कभी भी वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस फर्म का या उस कंपनी का हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं करना चाहिए। हमें ऑडिट नहीं करनी चाहिए उसके स्टेटमेंट का, हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अवॉइड नहीं करते हैं तो हमारा वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा और सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में, और हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। क्लास 5 में फेल्स टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट। क्या चीज? मटेरियल फैक्ट जो है हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। व्हिच इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। हमारा ये क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी मटेरियल फैक्ट है, जैसे मान लीजिए लोन है, लोन तो डिस्क्लोज करना ही करना है। स्टॉक है, क्या स्टॉक की स्थिति है वो हमें डिस्क्लोज करना ही करना है। मान लीजिए लोन स्टॉक एडिटर का हाइपोथिकेशन और हमने स्टॉक और डेटर को ही नहीं ठीक से सर्टिफाई किया या ठीक से निकाला उसको,
तो या हमने उसको ठीक से डिस्क्लोज नहीं किया तो मटेरियल फैक्ट हो गया उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो हमें उसको डिस्क्लोज करना ही करना है। अगर हम उसको सही से डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वह स्टेटमेंट भी नहीं सही होगा और इसके हमारी खुद की गुडविल खराब होगी और उस स्टेटमेंट उसकी खराब होगी, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी, कि हमने क्या कैसे कर दिया डिस्क्लोज, फाइनेंस हमने नहीं किया डिस्क्लोज, मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो। या फेल्स टू रिपोर्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्लास 6 में क्या कहता है, हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कोई मटेरियल मिस स्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें हमने वो कर दिया, रिपोर्ट नहीं दिया, तो वो हमारा क्या माना जाएगा, मिसकंडक्ट माना जाएगा। यानी हमको मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना ही करना है, अगर नहीं किए तो क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। A member in practice would be guilty for if do not exercise due diligence or gross negligence। अगर कोई भी काम करने में प्रोफेशनल काम करने में हम अपना ड्यू डिलिजेंस मींस जो प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल ड्यू केयर हमें इन्वॉल्व करना चाहिए काम करते समय, हमने अगर उस काम को नहीं किया है तो वह क्या माना जाएगा, हमारा प्रोफेशनल नॉलेज हमने यूज नहीं किया और ड्यू डिलिजेंस यूज नहीं किया, तो क्या हो गया, वो हम काम ठीक से कर नहीं पाएंगे, या निग्लिजेंट से काम करेंगे तो क्या वो ऑलरेडी हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रोफेशनल ड्यू केयर से काम नहीं किया। क्लॉज 8 में फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। हमको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर अपना ओपिनियन देना है, मींस ऑडिट करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और हमने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन किया है या हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें अपना एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं करना चाहिए, यानी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करना चाहिए। अगर क्लाइंट हमें डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है तो उसका ऑडिट नहीं करना चाहिए, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए। जब तक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना मिले तब तक हमें नहीं प्रिपेयर करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, मींस ऑडिट नहीं करना चाहिए। अगर हमने कर दिया तो क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग। Fail to invite attentions to any material departure from the generally accepted audit procedure। अगर हमने ऐसे जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है हमारे इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है, या हमारा जो इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग दिया है, लगभग 30-35 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं, मींस एसएज हैं, एसएई हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, कंपाइलेशन ऑफ एंगेजमेंट के लिए है, बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, एसएई है, एसआरएस है। तो उस सभी चीजों को फॉलो करते हुए हमें अपने प्रोफेशनल वर्क को करना चाहिए। अगर हम उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी मटेरियल डिपार्चर हो जाता है हमारा, और किससे जनरली एक्सेप्ट जो हमारा ऑडिट प्रोसीजर है या ऐसे हम डिपार्ट करते हैं, तो क्या माना जाएगा, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा क्लॉज 9 के अकॉर्डिंग। क्लॉज 10 के अकॉर्डिंग फेल टू कीप मनी ऑफ एन क्लाइंट अदर। हाँ, मनी जो है क्लाइंट के मनी को हम अपने पर्सनल यूज के लिए ना यूज करें, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, अदर बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, जो हमारा मेन बैंक अकाउंट उससे अलग क्लाइंट का पैसा। जैसे बहुत बार होता है हमें इनकम टैक्स जमा करने के लिए पैसा मिलता है क्लाइंट से, क्लाइंट सफिशिएंट समय पर नहीं है या वो नहीं कर पा रहा है, या उसके पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, तो इंटरनेट पर इतना विश्वास नहीं करते हैं, तो क्लाइंट को सीए कोई पैसा दे देते हैं। अब सीए जो है उस पैसे को अपने पर्सनल यूज के काम में न लाए, ना कि उस पैसे को गवर्नमेंट को सही समय पे पेमेंट करे। refuse to keep money upon a client other than the money meant to expend in separate bank account। जिस काम के लिए हमें क्लाइंट से पैसा मिला, हमको उस सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए और उसको जमा करना चाहिए गवर्नमेंट अकाउंट में। पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 में पार्ट 2 में कितने क्लॉज हैं, 4 क्लॉज है। अब पहला क्या था सेकंड शेड्यूल के, पार्ट 1 में क्या था, सी जो प्रैक्टिसिंग है उन्होंने जो गिल्टी किया है, यानी उन्होंने जो भी गलती किया वो बताए गए हैं। और पार्ट 2 में जो ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की है, बट यह दोनों मेंबर के लिए प्रैक्टिस में है या नहीं है, मीन्स प्रैक्टिसिंग और नॉट, जो जॉब वाले हैं या प्रैक्टिसिंग है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। कौन से मिसकंडक्ट है, जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मींस सीए एक्ट या सीए रेगुलेशन, सीए एक्ट 1949 या सीए रेगुलेशन 1988 वाला, या और भी गाइडलाइंस इशू किए गए हैं जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो वह क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा।
being an employee of company or an firm, any other person disclosing the confidential information. इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और हम कंपनी का इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज कर रहे हैं, अभी आपने पढ़ा एक जगह कि हम क्लाइंट का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, पीछे क्लास में था, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, मींस ये सीए एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है, जो या तो फर्म में हो, सीए फर्म में हो, या किसी कंपनी में हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो वहां पे काम कर रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर कर रहा है, वो हमें हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहिए। कभी भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन किसी भी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्लॉज 3 पार्ट 2 में includes any document to be submitted to the institute। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंस्टीट्यूट को मांगा गया है और हमने उस इंफॉर्मेशन को दिया है लेकिन गलत दिया, जानते हुए गलत दिया है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट और काउंसिल और कमिटी एनी इंफॉर्मेशन नोइंगली टू बी फॉल्स। क्या कह रहा है, हमने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है, जानबूझकर फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है और उसको दिया है, इंस्टीट्यूट को दिया है, तो वह भी हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। सो हमें ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डिफॉल्केट्स आर एम्बेजलमेंट ऑफ मनी। हम अगर कोई भी अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में पैसा पाए और उसको हम अगर एम्बेजलमेंट करते हैं या कुछ करते हैं पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में यह जो है प्रॉब्लम हो सकती है और यह जो है हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में एक क्लॉज है, इस क्लॉज में क्या बताता है कि जो मेंबर प्रैक्टिस में है या नहीं है, हु इज गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट, ये अदर मिसकंडक्ट में आता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। यानी पार्ट 3 में जो है मेंबर वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट वुड बी गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वुड बी गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट इफ ही इज एन हेल्ड गिल्टी बाय द सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट। अगर 6 महीने से ज्यादा है और अप टू 6 मंथ है तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में जाएगा, और अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो कहाँ आएगा, पार्ट 3 में आएगा, किसके, सेकंड शेड्यूल के है। और अगर 6 महीने से ज्यादा का हमको जेल हो गया, यानी किसी भी मेंबर को जेल हो गया विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा का अगर जेल है, तो उस केस में सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से हमको जेल हुआ है तो वह हमारा मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। सेकंड शेड्यूल के थर्ड पार्ट में अगर 6 मंथ से ज्यादा का जेल है तो पार्ट 3 का अकॉर्डिंग हम क्या माने जाएंगे, मिसकंडक्ट किए हुए माने जाएंगे, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माने जाएंगे। अब आ जाइए, हमने अपना क्लॉज कंप्लीट कर लिया है, अब कुछ और सारे हम अपने इंफॉर्मेशन जो हमें इंस्टीट्यूट के हैं और वो भी स्टडी कर लेते हैं, गाइडलाइंस और भी दिए गए हैं थोड़े बहुत। जैसे ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इशूड, कौन कौन से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में इशू फेस करते हैं, जैसे ऑडिटर authorized to give the favorable grade in the spite of their company में adverse comment ना दे। सोसाइटी का हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत बार होता है कि पैसा खर्च तो हुआ नहीं, बट वो खर्च दिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमें फेवरेबल इन्फॉर्मेशन वो दीजिए, हमें फेवरेबल ग्रेड दीजिए, फेवरेबल दिखाइए हमें, हमने सोसाइटी के लिए काम किया है, ट्रस्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी काम किया है, तो हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, एडवर्स कमेंट हमें देना ही देना चाहिए। In case of a fraud or suspicious irregularity, the auditor himself is required to file a public complaint। अगर कोई फ्रॉड या सीरियस इरेगुलरिटी हुई है तो ऑडिटर हिमसेल्फ रिक्वायर्ड टू फाइल पुलिस कंप्लेंट। ऑडिटर खुद जो है कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट कर सकता है सोसाइटी के अगेंस्ट। ऐसे 700 अप्लीकेबल होता है हमें अपने रिपोर्टिंग के लिए, अपने जो स्टैंडर्ड अपने 700 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उनको फॉलो किया जाना चाहिए और उससे डेविएट नहीं करना चाहिए। इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत बार होते हैं, लोग करते हैं कि प्रोफेशनल वर्क चला जाएगा या कुछ अनइथिकल बातें बोलते हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट जो है ऐसा नहीं एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली मना किया है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मोड में, हम अच्छे से अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर सकें और इस तरह से नहीं जैसे पब्लिक में बिजनेस में किया जाता है, वैसा नहीं। जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा गाइडलाइंस दिए उसी के अकॉर्डिंग अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसी की तरह से। एडवर्टाइजमेंट एंड सॉलिसिटेशन, क्लास 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल
क्या बताता है, सर्कुलर अपन लेटर टू द स्मॉल ग्रुप अपन क्लाइंट्स फॉर soliciting the work out to the persons who are unlikely to receive the services of chartered accountant। कह रहा है ना, कोई भी सर्कुलेशन कर रहे हैं लेटर का, किसमें छोटे से स्मॉल ग्रुप आप क्लाइंट्स में अपने वो प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करने के लिए, तो वो प्रोहिबिटेड, वो अलाउड नहीं है। अनाउंसमेंट इन द न्यूज पेपर फॉर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एड्रेस, पार्टनरशिप में कोई चेंज हो रहा है या हमारे पार्टनरशिप फर्म के एड्रेस में कोई चेंज हो रहा है, तो वह चीज अलाउड है, वो हम दिखा सकते हैं। बट उसमें फर्म का नेम कहीं मेंशन नहीं करना है, और न ही ऐसा करना है जिससे कि हमारे फर्म का एडवर्टाइजमेंट हो, ऐसा भी नहीं करना है। शुड बी लिमिटेड टू द बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मींस ओनली हमारा फर्म का एड्रेस चेंज हो रहा है ये बताना है, न कि हमको एडवर्टाइजमेंट करना है। इस तरह से नहीं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने फर्म का एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया एड्रेस चेंज की वजह से या पार्टनरशिप में चेंज की वजह से, तो ऐसा करना जो है प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। एडवर्टाइजमेंट फॉर सॉलिसिटिंग द क्लाइंट्स अंडर द बॉक्स नंबर इन द न्यूज़पेपर, ये प्रोहिबिटेड। जैसे बॉक्स बॉक्स आते हैं ना क्लासिफाइड और बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, तो वह चीज हमारे प्रोहिबिटेड है। एडवर्टाइजमेंट पेपर में इस तरह से प्रोहिबिटेड है जो क्लाइंट को सॉलिसिट करना चाहते हैं। एप्लीकेशंस फॉर इंपैनलमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट, हम ऑडिट के लिए इंपैनलमेंट करा सकते हैं, परमिटेड है, बट कैन नॉट मेक अ रोविंग, अगर हमें वो ऑडिट अलॉट नहीं हुआ है तो हम रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकते। मतलब हम उनसे पूछ नहीं सकते कि भैया क्यों नहीं हमें अलॉट किया आपने ऑडिट, हम उनसे आस्क नहीं कर सकते ये चीज के लिए कि आपने हमें ऑडिट क्यों नहीं अलॉट किया। हम ऑडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकते जो वेदर सच पैनल इज मेंटेन, क्यों नहीं हमें पैनल में रखा गया है, क्यों नहीं अलॉट किया, यह नहीं कर सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड है। एडवर्टाइजमेंट एंड सॉलिसिटेशन, टेंडर, हम टेंडर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है कि जनरली जिसमें वो पहले से फीस मांगी जाती है जो टेंडर के सिक्योर करने के लिए स्टार्टिंग में फीस मांगी जाती है, जिसमें फीस है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, हमको उसमें टेंडर नहीं फिल करना चाहिए। फिर पब्लिकेशन ऑफ बुक एंड आर्टिकल, बुक और आर्टिकल्स हम लिख सकते हैं लेकिन उसमें कहीं भी अपने फर्म का नाम नहीं लिखना है। हम बुक और आर्टिकल पब्लिश करा रहे हैं, ना कि अपने फर्म को एडवर्टाइजमेंट करा, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें अपना नाम दिया जा सकता है, फर्म का नाम नहीं मेंशन किया जा सकता है। परमिटेड सिर्फ हमारा नाम है, ना कि फर्म का नाम। एसोसिएशन विद एनी फर्म सीए शुड नॉट बी मेंशन, फर्म का नाम हम मेंशन नहीं करना चाहिए। इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन, ग्रीटिंग कार्ड हम दे सकते हैं लेकिन किसको दे सकते हैं, जिसको हम जानते हैं, ना कि हमने ग्रीटिंग कार्ड और न्यू ईयर पे या किसी होली दिवाली दशहरा या किसी फेस्टिवल पे हमने आम पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के लिए सर्कुलेट करने लगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्या कह रहा है, क्या चीज परमिटेड है और क्या परमिटेड नहीं है। जो ग्रीटिंग कार्ड है परमिटेड है लेकिन हम सिर्फ अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, कैन सेंड टू द क्लाइंट्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो हमें जानते हैं पहले से, ना कि आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं अपने प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर डिजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द नेम फॉर्म इज परमिटेड, any other professional designation status and qualifications is not permitted। जो ग्रीटिंग कार्ड है उसपे सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ले सकते हैं, अदर कोई भी डिजिग्नेशन है या स्टेट्यूट है कि क्वालिफिकेशन है, ये सब नहीं लिख सकते हैं। और किसको सर्कुलेट कर सकते हैं, ओनली और ओनली जो अपने जानने पहचानने वाले, यानी क्लाइंट्स को, रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को, ना कि आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द जनरल न्यूज सेटलर ऑफ इंस्टीट्यूट, आईसीआई जो हर मंथ निकालता है जनरल मेंबर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, हम वहां पे अपना क्लासिफाइड दे सकते हैं किसी भी लॉ के अमेंडमेंट के लिए, अपडेट्स के लिए, किसी भी कोर्ट केस के लिए, या कोई भी अपना ओपिनियन किसी भी चीज के लिए, या कोई सजेशन जो इंस्टीट्यूट मांगता है कि क्या चेंज रिक्वायर्ड है या कोई क्या प्रैक्टिकल इशू फेस किया जा रहा है, वो चीज हम किस में दे सकते हैं, न्यूज सेटलर में दे सकते हैं या जर्नल में दे सकते हैं। बट ओनली इन द कौन सा जनरल या न्यूज सेटलर, ओनली ओनली इंस्टीट्यूट का, आईसीआई का, आईसीआई के अलावा किसी भी जगह हम नहीं दे सकते हैं, परमिटेड नहीं है। गिव पब्लिक इंटरव्यू, पब्लिक इंटरव्यू तो हम दे सकते हैं। जैसे पब्लिक इंटरव्यू, कैसा पब्लिक इंटरव्यू, जैसे हमारा इनकम टैक्स है जो हर बार अमेंडमेंट आता है या जीएसटी का अमेंडमेंट आता है, ये चीजों के लिए हम पब्लिक इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन
उसमें हमें फर्म नेम मेंशन करना अलाउड नहीं है। ये एक तरह से हम अपने फर्म का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो कि अलाउड नहीं है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ परमिटेड है। वहां पे जहाँ पैसा दे के कराना है वहां नहीं, जहाँ पे पैसा नहीं देना है वहां पे अलाउड है। प्रोवाइड नो पेमेंट इज मेड टू द सच पब्लिकेशन, नो रेफरेंस ऑफ नेम ऑफ फर्म का नाम भी हमें मेंशन नहीं करना है। फिर साइन बोर्ड ऑफ ऑफिस, ऑफिस का साइन बोर्ड बहुत बड़ा, बहुत ग्लॉसी नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल है वैसा होना चाहिए, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा अलाउड किया गया है। व्हाइट और ब्लैक है, व्हाइट और ये ब्लू, या जो भी कलर इंस्टीट्यूट द्वारा परमिट किया गया सिर्फ उसी से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्लॉसी नहीं बना सकते हैं। क्लोज साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं होनी चाहिए उस पर। अब एंगेजमेंट इन एनी अदर प्रोफेशन आ रहा, इसके बारे में क्लास 11 में जो दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। क्या है जो कि इंगेज इन एनी अदर प्रोफेशनल बिजनेस में हम किसी में जा सकते हैं जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट परमिशन देता है, और किसमें किसमें स्पेशल परमिशन की जरूरत है। हमारा इंस्टीट्यूट सीए रेगुलेशन 1988 में दो तरह की परमिशन है। जनरल परमिशन मतलब जनरली बता दिया गया, स्पेसिफाइड 8-10 एक्टिविटी है कि भाई वो हम कर सकते हैं, उसके लिए हमको परमिशन इंस्टीट्यूट से नहीं लेना है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसके लिए हमको स्पेसिफिक परमिशन लेना है इंस्टीट्यूट से। अगर हमने नहीं लिया स्पेसिफिक परमिशन तो वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। मेंबर्स आर परमिटेड टू बिकम अ स्लीपिंग पार्टनर इन द फैमिली, यह परमिटेड है, जनरल परमिशन अलाउड है। अगर हम स्लीपिंग पार्टनर बन रहे हैं अपने फैमिली बिजनेस में तो वह अलाउड है, उसके लिए स्पेशल परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। He can also be a कर्ता ऑफ HUF and should not be actively engaged in, हाँ एक्टिवली हमको अपने सीए बिजनेस में ही इन्वॉल्व होना। अगर हम उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है तो हमें अलाउड नहीं है कि किसी और अदर बिजनेस में इन्वॉल्व हम। हाँ स्लीपिंग हो सकते हैं, मीन्स एक्टिव मोड में नहीं, इनएक्टिव मोड में हम वहां पे कर्ता हो सकते हैं या मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं अलाउड है कि हम एक्टिवली उस एंगेज में करें। अगर उनमें एंगेज हो गए तो फिर अपना व्यापार कैसे करेंगे, प्रोफेशनल बिजनेस, अपना प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस कैसे एम्प्लॉय करेंगे इसमें अपने वर्क में। इसलिए हम अपने अपने इसी प्रोफेशनल वर्क में ज्यादा अपना प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड डिलिजेंस लगाना, ना कि अदर बिजनेस में, वो परमिटेड नहीं है। Members are permitted to be an ordinary or a simple director in a company or promoter of a company. डायरेक्टर से में, हाँ हम कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन वह कौन सा डायरेक्टर होगा, नॉर्मल डायरेक्टर हो सकते हैं, सिंपल डायरेक्टर, ऑर्डिनरी डायरेक्टर। अब सीईओ सीएफओ ये सारी चीजों के लिए हमको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट अगर परमिट करता है तभी हम बन सकते हैं उस कंपनी में, नहीं तो हम नहीं बन सकते हैं। परमिशन मिलेगा तभी, नहीं तो अगर हमने विदाउट परमिशन के या परमिशन नहीं दिया गया उसके बाद भी हम सीईओ सीएफओ या और नॉर्मल डायरेक्टर के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कुछ भी हमने एक्सेप्ट कर लिया पोजीशन, तो वह क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, और उसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। मेंबर इंगेज इन एन अदर प्रोफेशन आर एन ऑक्यूपेशंस नॉट अलाउड टू परफॉर्म अटेस्ट, हाँ अगर हम किसी और बिजनेस या ऑक्यूपेशन में एक्टिवली इंगेज्ड हैं तो उस केस में ना तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, मींस आर्टिकल नहीं रख सकते हैं, ना ही अटेस्टेशन फंक्शन कर सकते हैं, मींस हम कहीं साइनिंग का काम नहीं कर सकते हैं, मींस जनरल काम कर सकते हैं, ना कि अटेस्टेशन का काम। कोई ऑडिट वर्क नहीं कर सकता और ना ही कोई आर्टिकल को ट्रेन कर सकते हैं। फिर एक्सेप्शंस लाइक, हाँ और हम टीचिंग मींस बहुत सारे सीए जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करते हैं, जो भी अपने सीए से रिलेटेड कोर्स है उनके लिए, बट वो अलाउड कितने, वो वीकली अलाउड है 25 घंटे, एक 1 वीक में मैक्सिमम 25 घंटे से ज्यादा हम नहीं कोचिंग पढ़ा सकते हैं। शेयरिंग ऑफ फीस ऑफ पार्टनरशिप विद नॉन मेंबर, ये रेगुलेशन 53A और 53B है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली वो प्रोहिबिटेड है कि हम जो है पार्टनरशिप किसके किसके साथ कर सकते हैं, किसके किसके साथ नहीं कर सकते। किसके साथ कर सकते हैं हम, नॉर्मली सीए के साथ तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसके साथ हो सकते हैं, पार्टनरशिप विद सिस्टर प्रोफेशनल। सिस्टर प्रोफेशनल मतलब सीए सॉरी सीएस सीडब्ल्यूए लॉयर इनके साथ हो सकते हैं, जो अपने सिस्टर प्रोफेशनल अपने वर्क से रिलेटेड है। जैसे सीएस जो कंपनी वाले काम करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट पे काम करते हैं, सीडब्ल्यूए लॉयर्स जो काम करते हैं, तो ये अपने सिस्टर प्रोफेशनल्स हो गए, तो ये हम इनसे प्रोफेशनल कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बीटेक, ये बी
बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक और ये आर्किटेक्ट, एक्चुअरी इन और या एमबीए, ये भी अलाउड हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं इनसे पार्टनरशिप, और इनके साथ फीस शेयर कर सकते हैं, लेकिन एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 में कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं। क्या गाइडलाइंस में क्या है कि कंडक्ट ऑफ मेंबर बीइंग एन एम्प्लॉय, क्या क्या मतलब एम्प्लॉय होने के साथ साथ हम काम कर सकते हैं, क्या हमारे कंडक्ट होंगे। फिर प्रोहिबिशन ऑफ अपॉइंटमेंट, हाँ हम जो है कॉस्ट ऑडिटर नहीं अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, हमारे कहाँ दिया गया है, गाइडलाइंस 2008 में दिया गया। प्रोविजन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, हम अपने रिलेटिव के फाइनेंस के ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो नहीं कर सकते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते हैं, यहाँ स्पेसिफिकली मना ही किया गया है, प्रोहिबिशन है। फिर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द मेंबर्स, एंड ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द मेंबर, हमें जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। और मैक्सिमम टैक्स ऑडिट कितना कर सकते हैं, 60। ये कहाँ है, हमारे सीए रेगुलेशन 2008 में ही बताया गया कि मैक्सिमम टैक्स ऑडिट जो कि 1 करोड़ से ऊपर की है, विद इन 1 करोड़ के नीचे किया तो लिमिट में अकाउंट की नहीं जाती है, लेकिन जो अपने स्पेसिफाइड लिमिट है 44 एबी का, उस लिमिट के एक्सीड वाला जितना भी ऑडिट करते हो मैक्सिमम एक सीए 60 कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा है, अपना काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 में लिखा है। Appointment of auditor, whether undisputed audit fees for previous auditor are unpaid, हम वहीं पे ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो सकते हैं जहां पे पहले से मींस एनओसी लेना पड़ेगा, वहां पे कोई फीस का डिस्प्यूट ना हो। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी का लिमिट बनाया गया ना, 30 कंपनी मैक्सिमम वो कर सकते हैं, और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 10 कंपनी जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनी जो कंपनी एक्ट अलाउड करता है, बट अपने इंडिया में कितनी ज्यादा लिस्टेड कंपनी बहुत कम है, मोर देन 90% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने बनाया है हमारे रेगुलेशन की, इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम 30 कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। कौन सी कंपनी, ये जो कंपनी एक्ट में अलाउड नहीं है, मींस ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी में अलाउड है वो 10 कंपनी या 20 कंपनी हो तो करना ही करना है, इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो मैक्सिमम 30 है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट इन द कंपनी कैन बी हेल्ड बाय द मेंबर 30 कंपनी, 30 नंबर कर सकते, 30 कंपनी ऑडिट कर सकते हैं। अब क्या करें, सीलिंग ऑफ फीस फॉर द अदर असाइनमेंट ऑफ द सेम क्लाइंट एज द स्टेचुटरी ऑडिट इज डन बाय द मेंबर, जो फीस डिसाइड किया गया है रिकमेंडेटरी इन नेचर, उसको हमें फॉलो करना है। नॉट टू एक्सेप्ट द ऑडिट वेदर द मेंबर इज इंडेप्ट, हमको कहीं भी अगर हमने लोन लिया है या कहीं इंडेप्टनेस है हमारा 10,000 रुपये ज्यादा का, तो हमें ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है, या किसी भी बैंक में हम अगर वहां लोन लिए हुए हैं तो वहां का हम ऑडिट नहीं कर सकते, चाहे वो कंकरेंट ऑडिट हो, स्टेचुटरी ऑडिट हो, कोई ऑडिट हो, हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने वहां से लोन ले लिया है नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा है, ये काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 में लिखा हुआ। क्यों ऐसा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल जजमेंट जो है बायस्ड हो जाएगा, हम प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा। डायरेक्शन ऑन अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अनजस्टिफाइड रिमूवल मींस हम प्रोफेशनल वर्क के लिए दूसरे ऑडिटर को किसी न किसी तरह से अनजस्टिफाइड वे में रिमूव करना चाहते हैं तो वो जो है नहीं अलाउड। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको थोड़ा रीड कर लेते हैं। Whether the statutory auditor can accept the system audit of the same entity, statutory auditor means बैंक का statutory auditor की बात कर रहा है, क्या हम वहां का सिस्टम ऑडिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। Statutory auditor can accept the assignment of system audit. Can concurrent auditor of a bank also undertake the assignment of quarterly review of the same bank, quarterly review statutory auditor करता है ना कि concurrent auditor करता है। जैसे अगर हम किसी भी बैंक के concurrent auditor हैं तो वहां का हम क्वार्टरली रिव्यू स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी जनरली ग्रामीण बैंक वो कर रहा है कि क्वार्टरली रिव्यू स्टेटमेंट आप दीजिए जितने भी कंकरेंट ऑडिटर है, बट यह हमारा अलाउड नहीं है और ये हमारे गाइडलाइंस के अनुसार नहीं अलाउड है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। कैन मेंबर एक्ट एज इंश्योरेंस एजेंट एंड अरेंज द बिजनेस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, नहीं ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो आप पूछ सकते हैं। हेलो धर्म सर।
क्वेश्चन आंसर। जी सर, हाँ सर, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम पूछ सकते हैं। वेदर सर्विस ऑफ लॉ फर्म विल बी इन कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज। क्या कह रहे हैं? विल सर्विस ऑफ लॉ फर्म फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज? पर्सनल सर्विसेज, ये लॉ फर्म की सर्विस जो लॉ, अगर हमने लॉ फर्म के साथ पार्टनरशिप किया है तब तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से तो फिर नहीं अलाउड है, क्योंकि वहां पे हमारा प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। सर ये वो ऊपर वाले एक दो क्वेश्चन मेरे वाले थे ना, तो वो हो गए हैं। जी सर, जी सर, अच्छा अच्छा, उसके बाद के ले लो आप नीचे वाले। जी सर, जी सर, अच्छा, कौन ये वाला सर? वेल सेक्शन 91 अप्लाइज इफ ट्रीट, अच्छा हाँ, इसको भी छोड़ दीजिए। उसके जी सर, बाद जो थर्ड थैंक यू लिखा है ना, इसके बाद क्या देखो आप। अच्छा, in a second schedule clause 5 and 6 it is in a defense that the members has exercised due care and due diligence, alleged misconduct is not attribute or negligence or default on a part of the members। ये क्या कह रहा है सेकंड शेड्यूल के 5 और 6 क्लॉज में? ठीक है, इसमें डिफेंस दैट द, अच्छा, ग्रॉसली नेग्लिजेंस, हाँ, हमें अपना प्रोफेशनल ड्यू केयर और इंटेलिजेंस पूरा का पूरा यूज करना है। अगर हम नहीं यूज करते हैं तो फिर हम अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाएंगे, और जब वर्क नहीं ठीक से कर पाएंगे तो फिर मिसकंडक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विकास जी, एक जी सर, चतुर्वेदी जी ने पूछा है, ये क्वेश्चन मेरा भी है कि ये जी सर, आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हेलो जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। हेलो जी सर, हेलो, चलो विकास जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो इतने। जी सर, जी सर। It is noticed that many articles CA Many articles CA mentions the firm they work for and it is misconduct। अच्छा, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो, हाँ, करते अभी सीए इंस्टीट्यूट ने आर्टिकल्स के लिए भी गाइडलाइंस निकाल दिया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये नहीं कर सकते हैं। CA mentions that the firm they work for and it is misconduct, मतलब वो काम आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में कर रहे हैं, और वो प्रोफेशनल नहीं बल्कि सीए के काम करें, लेकिन वह सीए के थ्रू कराएं, ना कि अपने खुद करें। अगर अपने खुद करते हैं और वह सीए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्लास ही माना करता है कि हम अगर सीए नहीं है तो किसी भी दूसरे सीए का, मतलब एक सीए का नाम या फर्म का नेम सिर्फ और सिर्फ सीए ही यूज कर सकता है, वो भी कौन सीए? जो एम्प्लॉय है या पार्टनर है उस सीए फर्म का, न कि कोई आर्टिकल या कोई आउटसाइडर किसी भी सीए का नाम यूज कर ले या फॉर्म यूज कर ले, काम नहीं कर सकते हैं, वो अलाउड नहीं है, वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। Next is CP lecture counted in the teaching assignment limit of 25 hours? टीचिंग असाइनमेंट लिमिट में 25 आवर्स का टीचिंग असाइनमेंट लिमिट में, हाँ, आ सकता है सर। नहीं, ये सीपी टीचिंग असाइनमेंट जो है जनरली उसके लिए है, सीपी स्टूडेंट्स तो के टीचिंग। प्रोफेशनल में आएगा ना, टीचिंग में तो नहीं आएगा ना सर। जी सर, जी सर, ये आप हाँ, ये तो प्रोफेशनल शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, ना हाँ, कि ये टीचिंग। ये टीचिंग किसकी बात कर रहा है? स्टूडेंट्स की टीचिंग की बात करता है 25 आवर्स। इसलिए जो है हमारा सीपीआर इसमें नहीं आएगा, अच्छा 25 घंटे की लिमिट में नहीं आएगा। अच्छा। उसके बाद लिखा है जी, वेदर जीएसटी ऑडिट कवर अंडर द टैक्स ऑडिट लिमिट? नहीं नहीं नहीं, जीएसटी नहीं। ऑडिट नहीं कवर होता है, उसकी अनलिमिटेड आप कर सकते हैं कितना भी चाहें। अभी उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, जब तक गाइडलाइंस नहीं आई है तब तक हम इंडिया पे हम फ्री हैं, जो चाहे जितना भी ऑडिट करना चाहे जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं सर। एक विकास जी, ये जो आपने कहा था कि हम जो है वो किसी को वर्क सोलिसिट करने के लिए पेमेंट नहीं कर सकते, बट अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशनल से कोई काम कराते हैं जी सर, तो उसको तो फीस दे सकते हैं ना अपनी फर्म से?
एक्चुअली सर हमको जो अलाउड है अपने सीए के अनुसार हम नहीं, जैसे सपोजिंग मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूँ जी सर। कंपनी का, हाँ सर। तो कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो है वो सेक्रेटरियल कंप्लायंस भी थोड़ा बहुत चेक करना होता है। जी सर, जी सर, जी सर। तो वो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी से कराते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज जो है हाँ better सर, हो। हाँ सर, हाँ अलाउड है सर। जैसे तो- हमारा ना एक ऐसे है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हाँ 620 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, वो कहता है हाँ कि जिस चीज में हम एक्सपर्ट नहीं हैं हाँ उस चीज का एक्सपर्टाइज हम दूसरे एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। और अब अगर हम हेल्प ले सकते हैं मींस विदाउट रेम्युनरेशन तो कोई हेल्प करेगा नहीं हमें। हाँ, विदाउट अब रेमुनरेशन तो ना नहीं कोई अपना जजमेंट देगा, ना ही हमें कोई सर्टिफाइंग वर्क करेगा। तो जहाँ हमको एक्सपर्ट हेल्प के लिए अलाउड किया है उसी बेस पे हमें फिर फीस शेयरिंग भी कर सकते हैं। शेयरिंग भी कर सकते हैं। जी सर। और यहाँ पे विदाउट पार्टनरशिप की बात हो रही है, पार्टनरशिप में तो अलाउड किया ही है हाँ अपना सी इंस्टीट्यूट की। हम CS CWA लॉयर आर्किटेक्ट इंजीनियर से यहाँ तो स्पेसिफिकली अलाउड किया अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तब। बट हाँ विदाउट पार्टनरशिप भी जैसा आपने कहा सर कि हम किसी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले रहे हैं चाहे वैल्यूएशन करा रहे हो तो उनकी फीस देते हैं तो वो अलाउड है, क्योंकि हर चीज के एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते सर। ठीक है सर। जी सर, जी सर। चलो, हेलो। हाँ धर्म सर। जी सर सर, सीए AK चतुर्वेदी जी लाइन पे हैं सर। जी सर। और सर चतुर्वेदी सर आप क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, सबसे सर पहले आपने नमस्कार हैंड विकास आनंद जी, आपने जो काफी डिटेल्ड में लेक्चर दिया ये काफी हेल्पफुल था और कई चीजें जो है हमें विस्मृत हो गई थी तो वो अपने याद दिला दी। दरअसल मेरा जो प्रश्न था आर्टिकल से संबंधित वो आर्टिकल क्लर्क के बारे में नहीं था, वो मैं थोड़ा इसलिए मैंने दोबारा पूछना चाहा। क्या होता है कि कई प्रोफेशनल जर्नल्स में आप पढ़ते हैं कि एक आर्टिकल आता है और उसके नीचे लिखा होता है CA so and so is employed with PricewaterhouseCoopers or working as a partner of Deloitte or a partner of Desai and Divanji, whatever, माने वो फर्मों का नाम लिखते हैं साथ में। तो क्या ये गलत है? क्योंकि प्राइमा फेसाई ये गलत लगता नहीं है, जी कोई एक्चुअली एडवर्टाइजिंग सर। इम्प्लाइड नहीं है, पर वो शब्दावली जो कही गई कि आप अपनी फर्म का जिक्र ना करें वो उससे मैं थोड़ा जी सर, जी सर, शंका आपकी उत्पन्न बात हुई। तो बिल्कुल प्लीज सही है। बताएं। हमें एक्चुअली क्या है, हम फर्म दिखा के यहाँ पे जो न्यूज सेटलर है या अपना स्टूडेंट जनरल है या प्रोफेशनल जनरल है, इसमें हम अपनी बात को और विश्वसनीयता के साथ, जैसे हम लोग अभी सीए हैं तो हम लोग जो बात कहेंगे एज पर रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस उसी तरह से वो जैसे डिलॉइट या EY लिखते हैं तो अब वह जो है अपनी बात को और जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो करेक्ट है, और उस चीज को वह अपने उस डिजिग्नेशन के थ्रू वो करना चाहते हैं सर। उसमें तो कोई मिसकंडक्ट नहीं है। ना वो मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा सर। अगर हम मतलब जनरल वाले होते और वो मतलब वहां पे भी अपडेट्स अपडेट्स के लिए जनरली आता है, या जो जजमेंट है अपने कोर्ट या हाई कोर्ट या यहाँ या अपना जो भी अपना सुप्रीम कोर्ट है उनके डिसीजंस के संबंध में वो अपना व्यू देते हैं कि इसका क्या ये अदर एस्पेक्ट भी हो सकता है, और वो अपनी बात इसलिए वैसे नॉर्मल सीए लिखेंगे तो वो अलग बात रहेगी। अब डिलॉयट या वहां से और उसी फील्ड से मान लीजिए हैं तो हमारी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। इस कारण से जो है वो वहां पे इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया हुआ है कि आप कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर। हाँ विकास जी हो गए क्वेश्चन आंसर शायद। जी सर, जी सर। हेलो। और कोई क्वेश्चन है सर? एक बार देख नहीं लीजिए सर सर। नहीं सर और कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा और मेरे कुछ नहीं है। को। थैंक यू विकास जी, बहुत इंटरेक्टिव सेशन थैंक यू सर। रहा आज का। तो सी अरुण कुमार सर लाइन पे हैं सर? हेलो हाँ हेलो। बोलिए। तो सॉरी सीए अरुण कुमार जी सर हट गए हैं। तो सर ऑन द बिहाफ ऑफ श्रीफोर्ट CP स्टडी सर्कल आई रियली थैंक्स टू CA JK चौधरी जी एंड CA विकास आनंद जी कि आज का सेशन इतना इंटरेक्टिव बनाया। जी सर। और हम फ्यूचर में भी सर आप लोगों की सेवा हमारे स्टडी सर्कल के द्वारा लेते रहेंगे सर। जरूर सर, जरूर। थैंक यू वेरी मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ सर। थैंक यू सर, और थैंक यू सर मोस्ट। विकास आनंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये आज ये कोड ऑफ कंडक्ट को टैकल किया, क्योंकि मैं ICAI में अदर देन काउंसिल मेंबर किसी को भी सुना नहीं कि आज कोड ऑफ कंडक्ट पे कोई बोल पा रहा है।
तो विकास जी बहुत इंटरेक्टिव Thank you, सेशन sir. आपने Thank you, बनाया sir. आज का सर। Yes, sir, बस आपकी ओके, थैंक यू आनंद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you Anand ji, thank you CA Jacob Chaudhary sir. Thank you. Thank you for today webinar, and thanks to all our participants at YouTube and our Zoom meeting, sir. Thanks to all, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Right. Right.